Hi, Saud. Hi, Sidra. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you doing? I'm good. I'm good. आप सुनाओ? Alhamdulillah. हम बस आज I think everybody is really pumped for the last session. So All right, great. they've been online since 9 a.m. in the morning and have had like 3 business clinics prior to this. Oh, wow. What we actually figured was some of them have not really worked on their proposals, but might still have questions around your session as well as, the financial bit of the proposal as well. Sure. I'm just gonna let you take over and be in the background for facilitation. चलें ठीक है perfectly. Perfectly fine. Assalamu alaikum, everyone. So I know you guys have had a long day. So why don't we just start with any questions or any queries you may have? Some of you may have attempted the assignment. Some of you may not have. लेकिन I'll leave this open. कि assignment related या अगर आपकी कोई practical experience है which is also linked to the assignment, कि आपने कोई फंड रेजिंग की कोशिश की हो या स्लाइड डेक डेवलप किया हो, तो प्लीज रेज योर हैंड. Oh, we've got a hand raised already. G Heather, why don't you start with your question first? Hi, Saud. I particularly tried to work more on your aspect, but I think really I made a standard sort of what when CL Life is fully operational, which is very soon. We're at an MVP stage right now. Okay. We're an edtech, a unique edtech company that also basically uses client input and human technology, which is our proprietary psychological framework. I'm just framing the company for you. Sure. And so I made a annual income statement, and then I made a cash flow statement, and I was trying to figure out and I made it for 2 years, but so much of it is like dependent on what happens. Like what's going to happen in the next 6 months is going to change everything. So when you said 18 months, in 18 months I was like, oh, this doesn't look good at all. So in the first 12 months I was like looking at a loss of about 7 million, and so that was 1 million more than this grant. But I had some other capacity grant that I could look for that 1 million. And then 12 to 18 months after the first year, I was looking at a 500,000 profit, and I was like, no one's going to be excited about that. And then I looked at the second year, actually the full 12 to 24, and that's when I was like, yeah, okay, I'm making a net inflow of almost 2.2 million. But again, so that's predicting what happens in the future. So I just I don't know, and this is not my first time, by the way, running projections. This is actually my third time in the last maybe 2 months. And so every time it's different. And I'm so glad you mentioned this, because if you don't mind me interjecting, I think आप जो बात कर रहे हो ना अभी, this is because you're in the thick of it. Now you're realizing what kind of variation you can have, and उससे जो discussions हैं वो इतनी diverse हो जाती हैं कि कभी कभार it becomes overwhelming for founders to have the narrative down कि भाई मैं सोच 8 महीने का 18 महीने कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगले महीने क्या होने जा रहा है. मेरा MVP है, लेकिन MVP मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टर के हिसाब से कुछ और है. तो अगर इन्वेस्टर के हिसाब से करना है तो उसमें कितना डालना है, कितना निकालना है. फिर आप सोच रहे हो यार कि मैं फलाना इन्वेस्टर के साथ मिलने गया तो उसने तो मेरी क्या कहते हैं ना, मैं ब्लंटली बात कर रहा हूँ, उसने मेरी खाल उतार दी कि आपने इतना हेवी अपना सैलरी स्ट्रक्चर क्यों रखा हुआ है. I'm just giving you sort of real-time feedback because I think this discussion is going to be very helpful for everybody else as well. कि आप जब भी projections बनाते हो, आप अपना एक best estimate ही लेके चल रहे होते हो कि अगर ये हुआ तो फिर ये होगा, अगर वो हो गया तो फिर फलाना होगा. और realistically what you do it is, जिस तरह मैंने आपको टेम्पलेट में भी दिया है कि break it down by 6 months, 12 months, 18 months. तो 6 महीने के periods रखो.
6 से कम हो जाए तो इट बिकम्स अ लिटिल टू शॉर्ट साइटेड, 6 से ज्यादा हो जाए तो फ्रैंकली उसकी वैल्यू ऐसे रहती नहीं है। और फिर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हो। अभी आई एम डीलिंग विद अ स्टार्टअप राइट नाउ, आई एम एन एडवाइजर टू देम। उनका 12 मंथ का प्लान है, उनके पास कैश फ्लो है, उनके पास रनिंग इनकम है, उनके पास एग्जिस्टिंग कैश ऑन बैलेंस शीट है, एंड बट दे नो के ये कहानी एक चेक पॉइंट तक पहुंचने के लिए है, और वो चेक पॉइंट उनका साल में आने वाला है। अब उस चेक पॉइंट से आगे जिधर वो जाना चाहते हैं, दैट इज 5 to 10 टाइम्स देयर करंट लेवल। वो मतलब यानी कि अगर मैं उस कंपनी से 1.5 साल बाद बात करूंगा तो वो आई वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट कंपनी। अगर आप देखो ना 5 to 10 टाइम्स ग्रो कर जाओ आप, फिर उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंडिंग चाहिए। तो वो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि द कन्वर्सेशन बिकम्स वेरी नेबुलस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं 6 महीने में क्या बात कर रहा हूं, मैं 12 महीने में क्या बात कर रहा हूं, 18 महीने में क्या बात कर रहा हूं, मेरी कंपनी क्या होगी मेरे हिसाब से, उसको उसमें मैं कितना कंट्रोल करता हूं, कितना कंट्रोल नहीं करता उस वक्त तक पहुंचने के लिए। तो रियलिस्टिकली व्हाट हैपेंस इज कि लोग कहते हैं कि देखें 6 महीने पे फोकस करें, दैट्स योर प्राइमरी लाइक स्वीट स्पॉट, फोरकास्टिंग स्वीट स्पॉट। 6 महीने का मतलब है 2 क्वार्टर्स, 3 महीने का एक, 3 महीने का एक। अब उसके अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक एमवीपी, आपने कहा आपके पास एमवीपी है, तो फिर उसको रोल आउट करना है। कुछ आते हैं कहते हैं जी एमवीपी बनाने में 6 महीने लग जाएंगे हमारे, ठीक है, दैट्स ऑल्सो नॉट एन इशू। आपकी अपनी स्टेज है। आई हैव डन सेवरल ट्रेनिंग्स ऑन इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, क्योंकि वो आप हर लेवल पे आप मतलब ऑपरेशनली फर्क होते हो, फाइनेंशियली फर्क होते हो, टीम फर्क होती है, तो नो प्रॉब्लम। अपने आप को, आपने जो प्रोजेक्ट करना है, जिधर आप खड़े हो भी, अगर आप हो विद एन एमवीपी, आई नो 10 अदर कंपनीज स्टार्टअप्स जिनका एमवीपी नहीं बना हुआ अभी तक, या लेट्स पुट इट दिस वे कि उनको काफी फीडबैक मिला है कि अपने एमवीपी को चेंज करो। अब नाउ दे आर स्टिल इन एमवीपी स्टेज, दे बीन इन एमवीपी स्टेज फॉर लाइक 1.5 साल ना। वो उन्होंने मार्केट में गया, उन्होंने कहा नहीं जी दोबारा चेंज करें, अब वो अगले 6 महीने फिर लगा रहे हैं उसमें। Whatever the case is, whatever your journey is, आपने अपनी जर्नी को लेके चलना है, ना कि किसी को इंप्रेस करना है, ना कि कोई आपने कहना है जी मैं तो $1 मिलियन की वैल्यूएशन होगी तो उस पर मैं $2 लाख रेस करूंगा तो मैं 20% कंपनी दे दूंगा, इस तरह नहीं। यू हैव टू से मैं जिधर पहुंचना चाहता हूं 2 क्वार्टर्स में, 6 महीने में, 180 दिन में, उसके लिए मुझे क्या करना है। उसके लिए मैं अगर अगर और घबराहट ज्यादा होती है कि यार इतनी देर में तो मैं शायद मैं रेवेन्यू ना जनरेट कर सकूं या इतना ज्यादा ना जनरेट कर सकूं, नो प्रॉब्लम, बट बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट दैट कि मैं रेवेन्यू जनरेट नहीं करूंगा, मेरा कैश बर्न 5 मिलियन नहीं होगा, मेरा कैश बर्न 10 मिलियन होगा, इट्स परफेक्टली फाइन, बट बी वेरी रियलिस्टिक, बिकॉज व्हाट यू डोंट वांट टू शो इज, यू डोंट वांट टू से कि जी मैंने हाथ हौला रखा है जस्ट टू not scare off the investors. Investors want to know your genuine journey. They want to understand कि आप जो चीज बनाने जा रहे हो उसमें एक्चुअल कितनी फाइनेंशियल इनपुट लगेगा, कितनी रिसोर्सेज लगेंगी। तो बी वेरी रियलिस्टिक, बी डोंट वरी अबाउट दूसरों का क्या है, क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आते हैं जी फलाना का बर्न तो ये है तो मेरा तो बर्न ज्यादा है, कोई बात नहीं जी, फलाना का एमवीपी है मेरा तो एमवीपी तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी जर्नी फर्क है, आपकी जर्नी फर्क है जी, उसके पास तो पूरी टीम है, मेरे पास तो 2 लोग हैं सिर्फ, मेरे पास तो टीम नहीं है, कोई बात नहीं। आपकी प्रोजेक्शंस आर रिफ्लेक्टिव ऑफ वेयर यू आर इन द जर्नी, इट डजंट मैटर, डू नॉट जज योरसेल्फ, डू नॉट ओवरथिंक दिस। जो भी होगा आपने, ठीक है, आई एग्री विद यू कि 18 महीने इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट स्पेशली एट अ स्टार्टअप स्टेज, क्योंकि वो दुनिया बदल जाती है 18 महीने के अंदर, वो तो कोई स्टार्टअप तो बहुत दूसरी चीज है। और आपको नहीं पता आप में से कितनों ने कितने पिवट्स मारने हैं अभी, स्टार्ट तो अभी कर रहे ना, आपको ये नहीं पता कि 4 महीने बाद कोई और आइडिया आ जाए। मैंने कितने स्टार्टअप्स के साथ काम किया हुआ है जो 6 महीने बाद उनकी शक्ल, उनका नाम, उनका लोगो सब कुछ बदल गया। सो अगेन, yes, you cannot forecast, you do not have that visibility. All you know is do you have a plan, do you have an MVP that you're going to scale, or you have an idea that you're going to MVP into, and then whatever the costs associated with those, you have to have a very good feel for that. उसके अंदर मैं सजेस्ट ये करता हूं कि आप उसमें 20% मार्जिन रखें, यानी कि अगर आप कहते हैं कि जी
मैंने 10 लाख रुपए चाहिए जी, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप कि जी 10 लाख रुपए चाहिए 6 महीने के लिए, ठीक है, तो आपको 10 नहीं चाहिए, आपको 12 लाख चाहिए, 20% का मार्जिन रखें उसके अंदर, क्योंकि यू विल एब्सोल्युटली बी रॉन्ग ऑन द अपसाइड और द डाउनसाइड, यू विल नेवर हिट दैट 10 कभी भी हिट नहीं करोगे आप। तो अगेन फोरकास्ट का प्रेशर इस तरह ना लेके आई हैव टू बी स्पॉट ऑन ईदर, यू नो। सो और फिर वही बात आ जाती है कि मकसद क्या है इस पूरी कहानी का? मकसद ये है कि यू वांट टू हैव ए वेरी गुड मेजरेबल फोरकास्ट जिसकी बेस पे आप प्लानिंग कर सकते हो अपनी। मैंने इतने लोगों को हायर करना है, इतना मेरा खर्चा है, इतना 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 इतना, एक महीने में ये है, दूसरे महीने में ये, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, और मैं सूलन मैं इसको इस तरीके से लेके चलना चाहता हूँ। ओके फाइन, अगर आप रूट ए लगाएंगे तो रूट ए की कीमत ये होगी, रूट बी लगाएंगे रूट बी की कीमत ये होगी। कीमत का मतलब है जो आपको फंड रेजिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी वो ये होंगी। सो have scenarios, play with the scenarios. आपने 3 दफा मेरे ख्याल से you said कि you've done 3 of these projections. I remember एक स्टार्टअप के साथ मैंने काम किया था, we were on the I think 16वां या 18वां बिजनेस मॉडल कैनवस और 25वां या 30वां मेरे ख्याल से फाइनेंशियल मॉडल। हमने इतनी दफा उसको, क्योंकि वो सिनेरियोज बनते जा रहे थे ना, अगर ये हो गया तो फिर क्या, अगर वो हो गया तो फिर क्या, फलाना इन्वेस्टर ने ये कह दिया, अच्छा चलो अगर हम ये तरीके ये रूट लगाएं फिर क्या है, अच्छा नहीं दूसरे ने ये कह दिया, अच्छा अगर हम ये डायरेक्ट जाएं तो क्या है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जाएं तो क्या है। अब वो इतने सिनेरियोज बन जाते हैं कि लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं, एंड देन यू हैव टू से ओके ठीक है, आई हैव टू पुट अ स्टॉप टू दिस। मैंने एक ब्रेक लगानी है कि इस तरह नहीं चल सकता कि इनडेफिनेटली आप चीज चलाते जाओ। सो दिस इज वेयर द रबर मीट्स द रोड, सो टू स्पीक। दिस इज वेयर जब आप थियरी को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो आपको समझ आती है कि यार ये तो ठीक ठाक काम है, ये असम्पशंस को टेस्ट करना है। मैंने ये बोला तो मेरे को फाउंडर ने कुछ और बोला, उसने ये असम्पशन लगाई, मैंने वो असम्पशन लगाई, ओके फाइन, लेट्स देन टेस्ट इट आउट। इन्वेस्टर ने ये कह दिया, यार बड़े डिमोरलाइज हो गए, हमने तो ये प्रोजेक्शन सोची हुई थी, इन्वेस्टर ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फलाना होना चाहिए। अब दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। That's why I keep saying कि get comfortable with the financial terms, क्योंकि असल जो है ना, जो असल चैलेंज है वो इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना है। इसमें आपने यू हैव टू बी अ डीलर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की तनख्वाहें भी देनी है, सब कुछ करना है, लेकिन ये आप सिर्फ एज अ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, यू रियली ट्राइंग टू सक्सीड एट दिस थिंग। It's not a MBA project in a school, in a university. It's you literally trying to inshallah make this business work so you can have the kind of lifestyle you want to live and the kind of impact you want to have. तो आसानी से नहीं आपको ये आएगी चीज। I don't want to get too in detail into that, but I hope I answered some of your I think concerns about, जो मुझे समझ आई है कि you have concerns कि भाई इसमें visibility के issues हैं। So my short answer is बिल्कुल होंगे, और ये खत्म नहीं होंगे, ये रहेंगे, and be comfortable with that. Okay जी, we have some other questions. Let's see, do we have a अच्छा जी, we have I don't know who's raised the hand first. चले हम ये Mughis and Ashar है हमारे पास जी। I think Ashar, you probably raise your hand first, so Ashar आप go ahead and I'll come to Mughis. Sir. मेरा क्वेश्चन इज अबाउट वैल्यूएशंस के at a very early stage. My question is about valuations. Oh अच्छा, sure. ठीक है, so at a very early stage, जैसे प्री सीड स्टेज के ऊपर या इवन सीड स्टेज के ऊपर जब हम लोग प्रोडक्ट मार्केट फिट कर रहे हैं, या भी हम लोग सिर्फ वाटर्स टेस्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ने मार्केट में जाके चलना है, कितना चलना है, do you really think उस स्टेज की जो वैल्यूएशन होती है, is it really valid? Because I kind of think that it's a big castle in the air जो हम उस टाइम पे बना रहे होते हैं, Yes. और हम लोग एक फाइनेंशियल मॉडल में बना के हम एग्रेसिव सेल्स पुट इन करके मैं मुझे 5 साल बाद मैं तो 2 अरब की कंपनी बन जाऊंगा। ठीक है, so do you think at that point safe notes are a much better vehicle at this point in time, और उसके जो कैप और क्या कहते हैं डिस्काउंट रेट होता है, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। देखिए सेफ नोट तो चलो हो गया ना आपका एक, आई मीन दैट्स मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मैं तो आपको जो मोटी बात है वो ये है कि वैल्यूएशन इज वेरी मच एन आर्ट एंड अ साइंस। आप जो मर्जी अपने फाइनेंशियल मॉडल में डाल दो, आप वैल्यूएशन दिखाने के लिए कि जी मैं 5 साल बाद दे दूंगा, 1 साल बाद दे दूंगा, 2 साल बाद दे दूंगा, भाई अगर
आपका इन्वेस्टर कहता है यार मुझे ये नहीं पता है कि मेरे पैसे से आप 6 महीने किधर होंगे, तो मैं आपको 5 साल पे कैसे वैल्यू कर सकता हूं। तो अ लॉट ऑफ वैल्यूएशन इज चेक पॉइंट ड्रिवन। अगर मैंने लेट से नारायण जाना है तो पहला चेक पॉइंट मेरा इस्लामाबाद से मरी लगेगा, पहले मरी तक तो पहुंचो मैं। अब मरी तक पहुंचने के लिए मुझे इतना फ्यूल चाहिए, इतना ये इतना वो, और फिर यू नो सो आई हैव टू बी मेंटली रेडी कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूं। अगर आप फाइनेंशियल मॉडल्स देखोगे, फ्रैंकली आई टेल यू दिस, कार्रवाई के तौर पे 5 साल की प्रोजेक्शन से पिच डेक्स में जाती हैं। Nobody looks at 5 years, nobody, but कार्रवाई के तौर पे जाती है ये। अब I'm just telling you कि this is how it is, बिकॉज उसमें बहुत कुछ होता है कि जी अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा। काफी शेख चिल्ली वाली सिचुएशन बन रही होती है, खाली पुलाव बन रहे होते हैं कि देखे ना जी उसके बाद तो मैं देखे ना ये $100 बिलियन की मार्केट है, तो अगर मैं 1% भी हो जाऊं तो मैं तो $1 बिलियन की मतलब हो कैसे जाऊं भाई 1%। पहले आपको ये नहीं पता कि वो 100 बिलियन की मार्केट है, दूसरा आपको ये नहीं पता 1% मार्केट को होना बहुत बड़ी चीज होती है। सो वैल्यूएशन becomes an argument at times. How you defend that argument is up to your ability to convince, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, परसों बताया था कि investor should be sold on Usher. He should be sold on you कि यार ये बंदा है, और then you should look at the model or the product or the service and say कि हाँ ये चीज है, ये बंदा है, ये चीज है, ये इसकी टीम है, हाँ ये कुछ, एंड मार्केट ये है। ये उसको कोई 2 3 4 चीजें उसमें देखनी होती हैं कि भाई प्री सीड है अभी क्या, लेकिन आई फील लाइक दीज आर वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू, लेट मी टेस्ट देम आउट। अब लेट मी टेस्ट देम आउट के अंदर प्री सीड में कुछ लोग कहते हैं जी ₹1,00,000 से ज्यादा मैंने नहीं देना, कुछ लोग कहते हैं करोड़ से ज्यादा नहीं देना। यू विल हैव ऑल द वेरिएशन, लेकिन फिर वो एक आर्बिट्ररी चीज बन जाती है कि जी लाख दें या करोड़ दें, आपको कंपनी कितनी मिल रही है। वैल्यूएशन का असल मकसद जो है वो ये नहीं है कि आपको कोई ख्वाब दिखाना है, वो ये है कि जिस इन्वेस्टर को या पार्टनर को आप ला रहे हो, हाउ मच ऑफ योर कंपनी आर यू गिविंग अप। टिपिकली people give around 15 to 20%, in some cases even 25% of the company at angel round level, somewhere in that ballpark. I'm not saying कि give up 20-25, मैं तो I would push you towards like closer to 10%, कि आप 10% अपनी कंपनी दो, और ये तब आप जाओ जब आपने बूटस्ट्रैपिंग की हो। ये नहीं कह रहा कि आपने यहां से जी वो साहु साहब ने आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाने सिखा दिए, पिच डेक बना लिए, जाओ कि अपनी कंपनी को अपने जो है ना 20% बेच दो जाके। पहले उस मॉडल के अंदर सारी वो चीजें करो जिससे आप कैश बर्न को नीचे ला सकते हो। तनख्वाहें कम लो, डिफर करो, अगर कोई रेंटल एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट हार्ड, ट्राई टू बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। अपने पैसे को ज्यादा यूज करो, क्योंकि जब आपकी इक्विटी आएगी तो दूसरा इक्विटी डालेगा कि यार वाकई इसका कोई इसमें कोई स्टेक है इस बंदे का। तो you have a lot of people that I wouldn't say a lot, but like significant amount have come to me and said कि सर मॉडल रेडी, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी, बताएं जी इन्वेस्टर किधर है। हम जब से जाके हमने रेज करना है जी $500,000। क्यों रेज करना है भाई? सर ये मॉडल ये कह रहा है। अच्छा नहीं, लेकिन लेट्स लुक थ्रू इट, लेट मी चैलेंज यू ऑन द मॉडल। जब मॉडल पे चैलेंज किया तो पता चला जी 500,000 रेज नहीं करना था जी, 200,000 रेज करना था। अच्छा फिर मैंने कहा यार ये अगर, और ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ जब ये $100 का था या जो भी था, तो मैं कहा यार आप $2 करोड़ $2 करोड़ रुपया किसी तरीके से अपने फंड्स के या मिल मिला के या किसी से लोन लेके नहीं कर सकते। कहते हैं सर कर सकते हैं, लेकिन वो फिर अपना पैसा लगेगा। तो भाई अपना ही पैसा तो लगाना है, अपना टाइम लगा रहे हो तो अपना पैसा भी तो लगाओ ना। असल तो इन्वेस्टर ये देखेगा आपसे। सो and then the valuation could vary, because if उनको लगता है कि थोड़े से ढीले हैं, थोड़े से they are not cost conscious, तो they will take more of your company. If they know कि they are financially disciplined, अपना पैसा डाला हुआ है, खून पसीना किया हुआ है, ₹10 की चीज ₹5 में करके, मतलब कॉस्ट जो है वो अपनी इनकर कर रहे हैं, देयर क्रिएटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर मैनेज किया हुआ है, then they are willing to play with you, then you can negotiate a better valuation, whatever that number is। 1 मिलियन की वैल्यूएशन लगा लें, 500 की लगा लें, वो एक आर्बिट्ररी डिस्कशन होगी आपकी। बट ये चीजें सटल चीजें जो आपको शायद मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज में नहीं सिखाया जाता, कि असल कहानी ये है कि वैल्यूएशन में आपका एफर्ट
आपकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, आपका आइडिया, आपकी मार्केट, ये चीजें ज्यादा मैटर करेंगी। और उसका जो कॉम्बो है वो हो सकता है आपको बना दे $1 मिलियन कंपनी, या आप कहो कि जी मैंने इसमें 2 करोड़ डाला हुआ है तो 2 करोड़ तो वैसे ही इसकी वैल्यूएशन है, इसके ऊपर हम इतनी मार्केट को टैप कर रहे हैं तो आप एक आर्बिट्रेरी लगा ले, 2 करोड़ ऊपर और डाल ले तो जी 4 करोड़ की वैल्यूएशन होगी। लिटरली समटाइम्स कॉन्वर्सेशंस हैपन लाइक दैट। एंड इट आल्सो डिपेंड्स कि जो सुनने वाला है, इन्वेस्टर है, वो आपके साथ एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस बात से। सो वैल्यूएशन विल टेक टाइम टू कुक बैक एंड फोर्थ, लेकिन बेस्ट वैल्यूएशन लेने के लिए आप इस तरह शो करो कि आपको इन्वेस्टर की जरूरत ही नहीं है। बेस्ट वैल्यूएशन आपको तब मिलेगी जब इन्वेस्टर को ये फील हो कि जी आपको कोई मुताजी नहीं है उसकी, you have done everything on your own and now you're coming to the investor. You've done everything and the only reason you're coming to the investor and not going to Habib Bank या अस्करी या कोई बैंक से लोन नहीं ले रहे, क्योंकि भाई लोन में आपको कैश फ्लो का हिट मिलती है ना, आपको रीपेमेंट करनी पड़ती है इंटरेस्ट की। आप तो प्रॉफिटेबल होना नहीं चाह रहे हो, आप तो कह रहे हो कि यार मुझे पैसा दो ताकि आई कैन ग्रो 20, 30, 100, 200,000 टाइम्स। लेकिन अगर मैं वो कैश जो मैंने इंटरेस्ट पेमेंट करना है अगर उसी में मैं लग गया तो मैं तो 5-10 टाइम ग्रो कर सकता हूँ, ज्यादा मैं ग्रो नहीं कर सकता। तभी मैं आपके पास आ रहा हूँ। You see what I'm saying? So sorry, I'm giving very long answers, लेकिन मैं इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज ये कॉन्वर्सेशंस कभी कभार Q&A में मिस हो जाती हैं, तो I'm covering a broader scope. Hopefully that helps. अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं बुगीज। अच्छा मसूद साहब, आप मेरे साथ एक जो मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस किया पिछले 2 सालों के अंदर, अभी मेरे पास एक और ऑर्डर आया हुआ है। तो मैंने उस टाइम जिस टाइम मैंने वो ऑर्डर प्लेस, मुझे कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो मैंने उसे कोड दी। उस टाइम पे डॉलर की प्राइस जो थी ना वो 180 थी। मैंने इन्फ्लेशन डाली, डेप्रिसिएशन डाली, तो मैंने अकॉर्डिंगली उसको 10% मार्जिन के अकॉर्डिंगली कंप्यूट कर दिया। ठीक है, मैं अगर आपको थोड़ा सिनेरियो दूं, आप मुझे अगर ये काइंडली सिमुलेट करके दिखा दें एक्सेल शीट में। होता हुआ ये कि दरमियान में आके एकदम से डॉलर की अनप्रेडिक्टेड जंप्स आती हैं। तो अब जब मैंने इसमें मार्जिन रखा था, मेरा तकरीबन 1 मिलियन का ऑर्डर था, तो मैंने इसमें को 1.5 लाख रुपए का मार्जिन रखा था। तो उस टाइम पर डॉलर की प्राइस थी 180 रुपीज़। ठीक है। तो अब जब मेरे कल कस्टमर ने मुझे पीओ ऑर्डर इशू करना था, तो मैंने उससे एक दिन पहले कहा, मैंने कहा सर इसमें मुझे पीओ ऑर्डर इशू ना कर। ठीक है, तो क्योंकि डॉलर की प्राइस एकदम जंप होके ऊपर चले गए। तो कोई मुझे फाइनेंशियली ऐसा मॉडल अगर आपको सिमुलेट करके दिखा दें कि दरमियान में अगर वेरिएशन आए तो हम उस चीज़ को कैसे, वो चेंज ओवर कैसे करना। बिकॉज मैं इसमें बहुत बुरी तरह 2 दफा मैं स्ट्रक आउट हुआ हूँ, और मैं अल्टीमेटली फिर ये डिसाइड करता हूँ सब अभी थोड़ी रुक जाओ, फिर बाद में। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि आपकी जो पीओ है, जो परचेस ऑर्डर है जी, वो पीकेआर में है? वो सर पीकेआर में मिलता है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जितने हम टेंडर करते हैं ना, या उनका काम करते हैं या फौज के साथ काम करते हैं, वो हमें डॉलर में पे नहीं करते। ठीक है, तो वो मेरे से पाक रुपीज़ में प्राइस कोट करती है और पाक रुपीज़ में ही उनसे ट्रांजेक्शन करते हैं। मेरे कनाडा में भी ऑफिस है, लेकिन वहाँ पे हम जा नहीं सकते स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स की वजह से, मैं वहाँ से कोट नहीं दे सकता। उनके लिए मैंडेटरी है, कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने करना होता है। डिपो के रूल्स हैं कि हम यहाँ से बैठ के ऑर्डर करेंगे। लेकिन मसला है कि मेरी जो उसमें रॉ मटेरियल लग रहा है, जो मेरी आईसीज हैं वो सिंगापुर से आ रही हैं, कुछ चाइना से आ रही हैं, डिस्प्लेज आ रहे हैं। अब मैं वहाँ पे आके फंस जाता हूँ कि ये एकदम प्राइस चेंज ओवर होने के अनप्रडिक्टेड, उसको किस तरह हैंडल करना है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, और वो किस तरह क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो मुझे नहीं पता लग रहा। देखें, आप जो बात कर रहे हो ना, जो मुझे समझ आ रही है, आप ये कह रहे हो कि आपको अगर एक्सचेंज रेट हिट होती है तो रेवेन्यू आपको ऊपर नहीं जाता, कॉस्ट ऊपर जाती है। आप ये कह रहे हो? एग्जैक्टली, कॉस्ट ऊपर चली जाती है, कॉस्ट ऊपर चली जाती है ना, और रेवेन्यू ऊपर नहीं जा रही, आप पास थ्रू नहीं रेवेन्यू कर ऊपर नहीं सकते। जा रहा। बिल्कुल, हाँ, तो वो पास थ्रू का मसला है। वो बेसिकली यही मसला होता है कि जी आप पास थ्रू नहीं कर सकते हो। इन्फ्लेशन हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, जो मर्जी हो, वन टाइम चीजें हो, जिस तरह कोविड की वजह से हो गया कि जी शिपिंग जो है रेट्स डबल्ड इन सम केसेस। तो उन्होंने कहा जी इसको अब क्या करें हम। तो अब वो जिधर जोर लग गया, लेकिन ज्यादातर क्लाइंट्स जो है वो पास थ्रू करने नहीं देते, कहते भाई हमने जो आपके साथ डील की हुई है वो उसी पे हम आपको देंगे, हम कोई एस्केलेशन वगैरह नहीं है। तो देखें, इसके अंदर वही ये फिर मैं आपको ऑफलाइन बैठ के आई कैन गिव यू सम मोर इनसाइट्स इनटू दिस। हैप्पी टू सेट अप सम टाइम विद यू नेक्स्ट वीक। लेकिन होता ये है कि देखें, फॉरेन एक्सचेंज को
मैनेज करने के लिए जो बड़ी कंपनीज करती हैं, छोटी कंपनीज की तो मैं बात नहीं कर रहा, बड़ी कंपनीज करती हैं, वो तो प्रॉपर एग्रीमेंट्स में जाती हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जाती हैं बैंक्स के साथ, ताकि उनको कल को ये ना मसला हो कि जी सिंगापुर में अगर रॉ मटेरियल ऊपर चला गया है तो वो जो आपका मार्जिन था वही खत्म हो गया ना। आप जो लेट से 5-10% मार्जिन पे बैठे हुए थे और वो फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट ही कोई 5-1% हो जाए तो आप तो उधर ही खत्म हो गए, मतलब वो तो कहानी की फायदे कोई नहीं फिर उसका। तो उसके लिए टिपिकली आपको करना पड़ता है, फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, बैंक के साथ डील करना पड़ता है, स्वैप्स करने पड़ते हैं, लेकिन वो ज्यादातर बड़ी कंपनीज करती हैं। छोटी कंपनीज के लिए एज सच कोई चीज एज सच अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो निगोशिएट कर रहे हो अपने वेंडर्स के साथ, उसके अंदर एफएक्स की हेजिंग को कवर किया जाए। हम भी एक फ्रेंचाइज के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ हमने लॉक किया है फॉर 12 मंथ्स। हमने उनको थोड़ा ज्यादा रेट दिया है, लेकिन हमने इस तरह दिया है कि अगर मैं आपको आप ही का रेफरेंस, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने कहा कि भाई तुम्हें हम साल का जो है ना जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो 185 पे होगी। अब वो डॉलर 200 पे भी चला जाए तो हमने उसको 185 ही देना। सो ये फिर आपकी मोस्टली ऑन द टीज एंड सीज, टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग, इसकी हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद यू कि वो क्या है, लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि बैंक्स टिपिकली डोंट प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी फॉर स्मॉलर एंटिटीज, जो कि करनी चाहिए। ये अच्छा मसूद जी। साहब, ये जो आपने मुझे टीएस का ये बताया, ये कितनी अमाउंट तक चल सकता है? बिकॉज मैं इसी डर की वजह से मैंने आज तक कभी जो है ना पाकिस्तानी को 3 मिलियन से ऊपर का प्रोडक्ट नहीं उठाता था। मैं इसी के अंदर अंदर रहते रहते अपनी सारी गेम खेलता हूँ। तो ये जब आप बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं ना, लेट से मैंने कोई प्रज्यूम करते हैं कि हम जो है ना वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है, मैंने ये मेट्रो के पुल का वो टेंडर उठा लिया। उसके अंदर कंपटीशन इतना करीब करीब होता है, आपने कंपटीशन से भी लड़ाई करनी है, और वहाँ पे आप मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ये टर्म किस तरह होगी। मेरे फादर सिविल इंजीनियर हैं, तो मैं उनसे भी ये चीज़ पूछता हूँ, तो वो कहते हैं पुत्र मैनू नहीं इस चीज़ का पता, किसी बड़े साइंसदान को लो पूछ। तो वो मुझे ना हमेशा इस चीज़ का वो इस तरह जवाब देते हैं। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट आउट। अगर ये काइंडली इसके ऊपर आप थोड़ा वो बताएं कि आपके साथ बड़े मैं प्रोजेक्ट। एक ऑफलाइन ले लेता हूँ मुगीज, अगर आप मेरे से रीच आउट टू मी, आपके पास मेरी ईमेल होगी, रीच आउट टू मी, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक आई कैन सिट डाउन विद यू, बिकॉज जो आप बात कर रहे हो ना दैट्स अ वेरी रियल कंसर्न। और हमने क्या किया है कि हमने तो बिकॉज वी नॉट डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्लोटिंग रखा हुआ है कि जो आता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने फिक्स किया हुआ है, यू नो, एंड फ्रैंकली आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट। मैं तो नहीं कह सकता कि डॉलर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मेरी कॉस्ट रुपीज में नहीं है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा बिजनेस चलाना। पैसे मुझे रुपीज में मिल रहे हैं, कॉस्ट मुझे डॉलर पे पड़ रही है, ये तो रिवर्स हो गया सारा। I'll be happy to share some details with you, but I think वो इस आज के स्कोप से वो बहुत थोड़ी सी आई थिंक एडवांस लेवल है, तो वी कैन हैव दैट कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए जी मोअज़्ज़म, प्लीज गो अहेड जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम जी। जी, मैंने 2 सवाल पूछने थे। एक तो ये सवाल पूछना था कि जो टेम्पलेट हमारे साथ शेयर हुआ था, वो एक्चुअली सारा ना सिर्फ नंबर बेस्ड है। मतलब वो जब आपने शायद अपलोड किया है तो उसमें फ़ॉर्मूलाज़ सारे ख़त्म हो गए हैं। तो ऑल्दो कि मैं उनको हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स में तो सम करके ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने जब ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में आए हैं, तो उसमें आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन फ़ॉर्मूलाज़ किए हुए हैं। जी जी तो बिल्कुल अभी वो बिल्कुल। सारी की सारी चीज़ जो है ना वो सिर्फ नंबर बेस्ड है। मतलब वी वुड नीड टू फिगर आउट एवरीथिंग आवरसेल्व्स। तो इज़ इट पॉसिबल कि वी गेट एक्सेल फाइल जो कि सोर्स के साथ हो? बिल्कुल आई हैव एक तो नो ये मैं सवाल था। वो आई थिंक जस्ट क्विकली बिफोर वी गेट टू दैट, सिद्रा अगर आप उनके साथ शेयर कर दो, मैंने तो वो फुली ऑटोमेटेड भेजा था, तो अगर आप उनके साथ शेयर कर लो बाद में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दूसरा सवाल क्या था? जी, दूसरा सवाल ये था कि हम लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, कोल्ड चेन मॉनिटरिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास ना एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग एक्चुअली पिछले 2 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो रफली जो हमारा कन्वर्जन टाइम है, क्लाइंट कन्वर्जन टाइम, वो रफली 3 टू 4 मंथ्स है। मतलब हमने किसी के पास फर्स्ट रीच आउट किया, प्रपोज़ल सबमिट कराया, फिर ट्रायल किया, कोटेशन दिया, तो तकरीबन 4 मंथ्स का टाइम हमें लग जाता है। तो मैंने ये कहना था कि इसमें फिर जब हम प्रोजेक्शन करें 18 मंथ्स में,
तो वो आपने वैसे तो ये बात मेंशन कर दी है कि अगर नंबर्स कम भी आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जस्ट टू री एम्फसिस के यानी वुड इट मैटर कि यानी आपने जो 4 माह का लैग पीरियड या 5 मंथ्स का लैग पीरियड रखा हुआ है? बिल्कुल, आई मीन लेकिन मैं आपको बताता हूँ मौसम, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये सारी कहानी बन जाती है, इसमें फिर वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व हो जाता है। अब आपने लेट्स से एक आपकी क्लाइंट एक्विजिशन साइकिल कह लें या क्लाइंट कन्वर्जन साइकिल कह लें, आप कह रहे हो कि मुझे 4 महीने लगते हैं, कुछ बिजनेसेस में 4 दिन लगते हैं, कुछ बिजनेसेस में 4 घंटे लगते हैं। अब लेकिन फिर जिस तरह वो आते हैं उसी तरह जल्दी भी चले जाते हैं कई दफा। सो every business will have a different risk profile, different conversion profile, कोई इशू नहीं है। ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि जो भी इन्वेस्टर हो, एक या आइडियली अगर आपको ऐसा इन्वेस्टर मिले जो आपकी सेक्टर को बड़ी अच्छी तरीके से समझता है, तो उसको पहले ही पता होगा कि भाई ये तो 3-4 महीने की गेम है कम से कम, तो वो समझ आ जाती है। अगर आप किसी को उठा रहे हो जो कह रहा है कि जी मैंने तो ऑनलाइन एड्स चलाता हूँ मैं, तो मुझे तो वो इमीडिएटली डे 1 मुझे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, वो उसके लिए मुश्किल होगा उसको डाइजेस्ट करना। फिर वो कॉन्वर्सेशन दूसरी तरफ चली जाती है कि भाई फिर उस इन्वेस्टर के पीछे जाओ जो आपकी रिस्क प्रोफाइल को समझता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद 3 to 4 months। अगर आपका वो इंडस्ट्री के अंदर इट टेक्स दैट लॉन्ग, बिकॉज मैं टेक इंडस्ट्री में रहा हूँ काफी, तो टेक के अंदर तो है ही मसला ये कि भाई आपने प्रोडक्ट लेके जाना है, आपने डेमो कराना है, वो डेमो चल रहा है जी 3 महीने का, फिर उन्होंने ओके कर दिया, फिर उन्होंने ट्रायल जो ट्रायल से निकलते हुए जो इनिशियल यूनिट्स हैं वो लिए हैं, फिर वो 3 महीने चलेंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल जो मेन पीओ है वो आएगा, तो वो तो कहानी पूरे 1 साल की लग जाती है। एंड इट हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली। उसके बरक्स जो है वो ये है कि जी अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोडक्ट आपने रोल आउट किया कहीं, तो वो आपने मार्केटिंग के इंजन पीछे लगाया हुआ है और एज एक्विजिशन होती जा रही है, आपको रियल टाइम में डेली पता चल रहा है कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। सो नथिंग रॉन्ग विद योर कन्वर्जन साइकिल्स। हाँ, ये जरूर आप करो कि ideally what you need to have is a very clear strategy on acquisition and retention। तो acquisition में lead times कम किए जाएं और वो किस तरीके से आप कर सकते हो, because a lot of investors थोड़े से वो frustrate होते हैं कि भाई मतलब ये जो ऑपरेशनल साइड है इसको बेहतर किस तरह मैनेज की जा सकती है। हमें आपका बहुत बड़ा ग्रैंड विजन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि एग्जिस्टिंग चीज को आप किस तरह बेहतर कर सकते हो। तो कपल ऑफ स्टार्टअप्स दैट आई वर्कड इन द पास्ट विद, उनका कोई एज सच कोई यूएसपी नहीं था, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मैं नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ही कोई अनोखी चीज कर रहे थे जो मार्केट में नहीं हो रही, लेकिन उनका यह था कि सर हम अपने सीसीसीज इंप्रूव करेंगे। सीसीसी इज कैश कन्वर्जन साइकिल, जिसमें आपने क्लाइंट कन्वर्जन बोला ना, इस तरह कैश कन्वर्जन साइकिल है। तो सीसीसी में ये होता है कि पेबल्स और रिसीवेबल्स को आपने देखना होता है कि हमने रिसीवेबल्स जो है उनको रिड्यूस करना है, हमने और पेबल्स को हमने एक्सपैंड करना है। तो उससे ये होता है कि आपकी कैश कन्वर्ट जल्दी होता शुरू हो जाता है, तो विच मीन्स यू हैव मोर कैश ऑन हैंड एंड यू हैव लेस कैश रिस्क। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई आप कोई हट के प्रोडक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन आप हट के ऑपरेशन जरूर कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यूएशन थोड़ी सी इस साइड पे ज्यादा लगेगी, बिकॉज आप लोगों को गुर पता है कि किस तरीके से ज्यादा पैसे को लाना है बिजनेस में कंपेयर टू समबडी एल्स। आप लेट्स से एक कंपनी है वो करोड़ रुपए लाती है 1 महीने में, लेकिन दूसरी जो एवरेज कंपनी है वो करोड़ रुपए लाती है 2 महीने में। वेल तो जो 1 में लाती है वो ज्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि ये आइडिया से हट के ऑपरेशनल एडवांटेज आपका एक है जो कि विच हैज वैल्यू, विच एब्सोल्युटली हैज वैल्यू। तो यू विल बी एबल टू, मेरे हिसाब से यू विल बी एबल टू विन कस्टमर्स, सॉरी इन्वेस्टर्स, इफ यू कैन हैंडल कस्टमर्स बेटर। क्योंकि एंड में इन्वेस्टर क्या सोचता है, वो ये देख रहा होता है कि भाई किस टीम के ऊपर मैं बेट करूं, किसको मैं फंड करूं जो कि मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस में से ज्यादा वैल्यू निकाल के दे। और वैल्यू 50 डिफरेंट तरीकों से, रेवेन्यू से है, ट्रांजैक्शन से है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू से है, इंप्रूवमेंट इन मार्जिन से है, आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल से है कि जी जो है ना एप्पल के लेट से कस्टमर जो है वो एक्वायर हो जाते हैं $10 में पर कस्टमर, जो दूसरी कंपनी है उसके $12 लगते हैं। तो ये छोटे छोटे मेट्रिक्स होते हैं जो कि बहुत मैटर करते हैं इवेंचुअली, तो वो आपके बिजनेस मॉडल को तगड़ा करते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं विच आप कह रहे हो कि जी मैं जो मर्जी जोर लगा लूं, मैं इसको 3 से 4 महीने से कम कर ही नहीं सकता, तो ठीक है, दैट्स फाइन।
That's part of your profile. It is what it is. तो but try to, ये सिर्फ थोड़ा सा मैं एडेड कलर इसमें इस वजह से दे रहा हूँ बिकॉज अगर हमें बात से बात निकल रही है तो ये जहन में रखें कि इन्वेस्टर्स आर वेरी क्यूरियस के इसके बाद आप क्या बोलने जा रहे हो कि जी 4 महीने लगते हैं, चलो वो तो ठीक है, 4 से आप 3.25 कर सकते हो, 3.5 कर सकते हो, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और जो दूसरा कहेगा जी बिल्कुल कर सकते हैं, 4 महीने मार्केट में लगते हैं, हम 3 महीने में लाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ आवर रिलेशनशिप्स, बिकॉज ऑफ आवर द वे वी एक्वायर कस्टमर्स, या बैक एंड पे आप कहो कि जी आने में तो उतना ही टाइम लगता है 3-4 महीने, लेकिन हम रिटेन ज्यादा करते हैं। इंडस्ट्री की रिटेंशन जो है वो 70% है, हमारी रिटेंशन 80% है। क्यों? क्योंकि हमारी कस्टमर सर्विस बेहतर है, हमारा फलाना बेहतर है दुकान। तो अब ये वाले जो मैट्रिक्स होते हैं ना चीजों में, ये आपको एक बूस्ट देते हैं वैल्यूएशन के अंदर कि ये कोई हट की चीज कर रहे हैं, बेशक आइडिया हट के नहीं है, लेकिन उसको, उस आइडिया को नर्चर अच्छा कर रहे हैं, उस आइडिया की डेवलपमेंट अच्छी कर रहे हैं। तो होपफुली दैट आंसर्स दैट। एक साहब थे, आई थिंक ही जस्ट लेफ्ट, सौरभ साहब थे शायद। जी थैंक यू। जी 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 can I have the question? So we were having a meeting with an angel और हमने उनको सेफ ही ऑफर किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि since I am the first investor, so I would never come on safe, और I would definitely come on equity. तो इस चीज पे पहले भी बात हुई, तो इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। और दूसरा मेरा सवाल एक ये है कि हमें स्टॉक ऑप्शंस के अंदर एम्प्लॉय पूल भी रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो गुड प्रैक्टिस कितनी है, कितना को हमें एलोकेट करना चाहिए फॉर आवर एम्प्लॉइज, ताकि उनके साथ हम इन्वेस्टिंग करें। या वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। आई थिंक पहला जो आपका सेफ का सवाल है, सेफ में आप क्या ऑफर कर रहे थे इनको, जस्ट सो आई अंडरस्टैंड। So like well in safe of course there was no percentage as such, वो तो फिर 2 years के बाद जाके उसमें होना था ना कि उस वक्त जो वैल्यूएशन होगी उस लिहाज से उनको प्रोपोर्शनेटली एक इक्विटी मिलेगी। नहीं, मैं कहने का मतलब है कि आपने उनको क्या विंडो दी थी कि आपने कोई बोला था कि जी हम 6 महीने, अब आपने बोला 2 years, आपने बोला कि 2 साल तक हम ये कैपिटलाइजेशन ओपन रख सकते हैं कि आप जो भी होगा, जिस तरह भी होगा, फिर आपको एक परसेंटेज मिल जाएगी उसकी। आपने इस तरह बात की है कि 2 साल की विंडो दी आपने? जी उनसे हम इस सवाल तक वैसे पहुंचे नहीं, लेकिन हमारे जहन में यही था कि अगर वो पूछते तो हम यही कहते कि 2 साल का हमें पीरियड चाहिए। उन्होंने तो मतलब राइट अवे सेफ सुनते ही ना फिर हमें ये बात बता दी। अगेन फ्रैंकली 2 साल इज वेरी, हाँ नहीं, क्योंकि वो सिंपल चीज है ना, क्योंकि सेफ तो वही है ना कि व्हाटएवर हैपेंस एंड जो भी वैल्यूएशन सेट होगी हम उस पर आपको ले आएंगे। लेकिन इक्विटी का ये होता है कि इक्विटी दे कंट्रोल द वैल्यूएशन। अगर मैं कहता हूं जी मुझे सेफ नहीं चाहिए, मैं इक्विटी पे, क्योंकि देखें ना, अगर या तो हो कि कोई बहुत तगड़े इन्वेस्टर्स पहले से बैठे हैं उसमें, तो मैं ट्रस्ट करूंगा यार ये इक्विटी ठीक ही वैल्यूएशन होगी, आई अंडरस्टैंड कि कंपनी इज वेल कवर्ड, मैं इसमें उतर जाता हूं, मैं ज्यादा बैक एंड फोर्थ नहीं करता, जो वो वैल्यूएशन आएगी उसमें मैं आ जाता हूं। जो दूसरी साइड है इक्विटी की, उसमें यह है कि दे कैन से कि भाई देखें, हमने अगर आपको आना है एंड वी आर योर लीड इन्वेस्टर, तो लीड इन्वेस्टर हैं, वी आर सेटिंग द वैल्यूएशन, आपको लेवरेज देनी पड़ती है, ठीक है ना। आप एक सिंडिकेट या एक ग्रुप के बाद आते हैं तो वो आपकी लेवरेज फर्क है, आप सबसे पहले मैदान में उतरते हैं वो आपकी वैल्यूएशन या लेवरेज फर्क है। और टिपिकली होता यही है कि पीपल डोंट वांट टू गिव अप कंट्रोल, कि भाई मैं अगर मैं होता ना तो मैं 20% कंपनी लेता, ये इस ग्रुप ने जो है सिर्फ 15% लिए। तो ये होता है इन्वेस्टर्स को इसकी तकलीफ कि भाई मैं तो ज्यादा बेहतर नेगोशिएट कर सकता था अगर मैं खुद जाता, लेकिन अगर लेट से और लोग मैदान में हैं और वो इवैल्यूएशन लगा देते हैं तो चलो आई विल प्ले अलोंग। सो पीपल डोंट लाइक के कुछ केसेस में जिसमें रिस्क ज्यादा ले रहे हो कि कोई वैल्यूएशन कोई और लगाए। ये डिपेंड करता है। और बाय द वे दिस इज नॉट एवरी इन्वेस्टर, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर वेरी कंफर्टेबल विद सेफ, उनका इतना इशू नहीं होता। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, दे जस्ट वांट मोर कंट्रोल अप फ्रंट व्हेन द रिस्क इज हायर, दैट्स ऑल। इट्स जस्ट इट्स अ रिस्क रिवॉर्ड, आप कह लो रिस्क एपेटाइट है, जो कि लोगों के लिए डिफरेंट होती है। फिर आपने बात की
एम्प्लॉय ऑप्शंस की, मैं सब फाउंडर्स को कहता हूं कि प्लीज प्लीज कम से कम 10% अपना एलोकेट करें। आप टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तनख्वाहों के ऊपर, और अभी तो खैर पाकिस्तान में तो वो वो एक स्टिल वेरी नेसेंट, लेकिन आप दुनिया में जिधर भी जाएंगे, अगर आपने स्टार्टअप का स्ट्रक्चर हैवी रखा, यानी कि कॉस्ट स्ट्रक्चर हैवी रखा, यानी कि तनख्वाहें 3-3, 4-4 लाख की तनख्वाहें जा रही हैं, जो कि मैंने कुछ स्टार्टअप्स के मॉडल्स में देखी हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपको मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि कैश इज किंग। कैश को प्रिजर्व करना है, इक्विटी को दांव पे लगाना है इन अ वेरी कैलकुलेटेड वे। यानी कि भाई मैं आपको, आप सीएमओ हो, सीएफओ हो, सीटीओ हो, सीएक्सओ हो, सीईओ हो, व्हाटएवर योर डेजिग्नेशन इज, उसकी ये कैटेगरी है। आप एडवाइजर हो, उसमें आपको इतनी परसेंटेज मिल रही है। आप एंट्री लेवल एम्प्लॉय हो, विल स्टार्ट यू विद दीज मेनी शेयर्स। आपने डैशबोर्ड्स के कोई केपीआईज मीट किए हैं, वी विल इशू यू दिस मच इंसेंटिव। वो सारे का सारा बना के आपको कम से कम 10% सेट असाइड करना चाहिए। और अच्छे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे लुक फॉर दिस, दे डोंट लाइक व्हेन पीपल से कि जी आई ओन 100% ऑफ द कंपनी एंड और जी मुझे 3 करोड़ पे चाहिए, उनमें से जी 2 करोड़ की सैलरी है। दिस इज नॉट, आई मीन, सो आई वुड रियली से कि शेयर्स को इस तरह यूज करें, अपनी रिक्रूटमेंट के लिए यूज करें, ताकि जिन्होंने आपके साथ टिकना है वो सही रीजन के लिए टिके आपके साथ। जिनको आपने अगर सैलरीज बहुत ज्यादा दे दी, एंड अगेन इट्स अ वेरी फाइन लाइन, यू डोंट वांट टू अंडरपे एनीबॉडी ईदर, लेकिन यू डोंट वांट टू ट्रीट देम लाइक कि जी वो कोई 50 साल के किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में कोई काम कर रहा है कि जी उसको फुल फ्लेज तनख्वाह भी मिल रही है और सब कुछ मिल रहा है, बाकी 50 बेनिफिट्स मिल रहे हैं। परफॉर्मेंस कल्चर क्रिएट करने के लिए employee option pool is an absolute must. तो 10% is what I would say. बहुत अगर आपकी कोई talented team है, maybe 20%, but remember ये सारे dilutive है, यानी कि कल को पैसा आएगा तो ये एंटी डिल्यूशन नहीं है कि इसमें ये नहीं है कि जी हम तो वहीं के 10% पे बैठे रहेंगे। Everybody will get diluted. सो जस्ट रिमेंबर के जो एम्प्लॉय ऑप्शन पूल है, और वो फिर एक लंबी डिस्कशन हो जाती है, उसको आप कॉमन इक्विटी पे रखें। आप आए भी, आपको भी कॉमन इक्विटी दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। कल को इन्वेस्टर आता है, वो कंपनी 50% कंपनी उठाता है, गेस व्हाट, आपकी परसेंटेज 50% कम होगी। हाँ, गोल ये है कि वैल्यूएशन 400% इंक्रीज हो जाए, राइट? दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट, आइडियली। लेकिन dilutive equity, common equity in the employee option pool around 10% is what I would suggest. ये सवाल है किसी का? अच्छा नहीं, ये मेरा हाथ। Yes. Are there any other questions? Sure. Are there any other questions? Sir, can you speak a little bit about, you talked about common equity, which is dilutive. Can you speak a little bit about the other types of stock options as well? Sure. तो टिपिकली आपकी कॉमन होती है, प्रेफर्ड होती है, और भी बहुत सारी आप चीजें डाल सकते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट्स होते हैं। आई एम डीलिंग विद अ स्टार्टअप जिन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, और अब उनके पसीने छूट रहे हैं कि हमने कन्वर्ट क्यों किया था, क्योंकि उनका बिजनेस इज अब नाउ दे गेटिंग मैसिवली डिल्यूटेड। आप देखें, ज़हन में आप एक चीज रखो कि जो प्रेफर्ड इक्विटी, लेट मी स्टार्ट अगेन। आपको याद है जब हमने परसों किया था, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, राइट? सो इक्विटी जो है वो सारा का सारा क्लेम है कंपनी पे, नेट क्लेम है, लेकिन वो तब होता है जब आपने क्रेडिटर्स को या लेंडर्स को पैसे दे दिए, उसके बाद जो कुछ बचेगा उस पर क्लेम है। यानी कि सीनियर जो है सबसे ज्यादा, जो सबसे ऊपर है, जिनको आपने सबसे बड़ी प्रेफरेंस देनी है, सबसे ज्यादा इज्जत देनी है, सबसे ज्यादा कैश फ्लो का हक उनका बनता है, वो होते हैं आपके लेंडर्स। तो उनकी रिस्क क्योंकि कम होती है तो उनका रिटर्न भी उनको कम मिलता है। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर्स की रिस्क ज्यादा होती है, उनका रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो सबसे सीनियर जो होता है वो होती है डेट। अगर आप बैंक से जाकर उधार ले लो तो वो सबसे पहले आपको देनी पड़ेगी, बेशक आपके पीछे इलॉन मस्क की इन्वेस्टर क्यों ना हो,
इट डजंट मैटर। लेकिन पहले जाएगी, पहले आपका मुस्लिम कमर्शियल बैंक या अस्करी या मीजान को जाएगा, उसके बाद इलॉन मस्क को जाएगा। तो सीनियर ध्यान में रखें, सीनियर सबसे पहले डेट होती है, फिर आती है इक्विटी। इक्विटी में सबसे ज्यादा सीनियर प्रेफर्ड होती है। टिपिकली प्रेफर्ड इक्विटी वो होती है जिसमें थोड़ा बहुत डेट की सीनियरिटी भी होती है और इक्विटी के फायदे भी होते हैं। उसके अंदर भी कुछ वेरिएशंस होती हैं, उसमें वोटिंग राइट्स भी होते हैं। यानी कि वो कहते हैं, अब मैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन जो एक वोट जो सब पे भारी होता है, वो कभी कभार उस तरह की चीज होती है कि यानी कि जी हमारे 10 इक्विटी शेयर्स जो है हैव द सेम वोटिंग पावर एज 1 प्रेफर्ड शेयर। तो जो प्रेफर्ड वाले हैं वो ऑन बुक तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो जी सिर्फ 5% कंपनी को ओन करता हूँ, रियलिटी में उनका 50% वोट है। कहें जी ये कैसे हो गया? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो प्रेफर्ड है, उसको आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए हुए। फिर वो ये भी हो सकता है कि जब आपने, मतलब स्टार्टअप्स के लेवल पे तो नहीं, लेकिन बाद में होता है डिविडेंड्स देने होते हैं, तो डिविडेंड्स प्रेफर्ड को जाते हैं। तो प्रेफर्ड में भी 50 वेरिएशंस होती हैं। फिर कन्वर्टेबल होती है। कन्वर्टेबल वो होती है कि होती तो डेट है, अगेन सीनियर, लेकिन आप नहीं डेट पे कर सकते हो। तो फिर क्रेडिटर कहेगा देखें भाई आपने पैसे देने नहीं है, आपसे बिजनेस हैंडल नहीं हो रहा, आप मुझे कन्वर्ट करें बस, ये हमारी कवेनेंट है। आज जो भी वैल्यूएशन है ना, और हमारी जो हमने आपको उधार दिया हुआ है विद इंटरेस्ट, अगर इसको आप इस तरह समझें कि वो आपको इक्विटी मिल रही है, तो आज कितने पे आप कितनी हमें इक्विटी देंगे उस पर? उससे होती है कि कई दफा बड़ी मैसिव डिल्यूशन होती है। अब मैं हर केस में नहीं कह रहा, लेकिन अभी जैसा 3-4 पाकिस्तान में जो मैंने केसेस देखे हैं, उसमें क्योंकि मिसमैनेजमेंट हुई भी थी, वो डेट पे ऑफ नहीं कर सके, तो उन्होंने कहा जी कन्वर्ट कर दें। तो जो नीचे जो कॉमन इक्विटी वाला बैठा हुआ है वो कहते हैं जी भाईजान कन्वर्ट ना करेंगे तो डिल्यूट कर देंगे हमें सारे। लेकिन आप सीनियर हो भाई, डेट कन्वर्टेबल डेट कहते हैं ना उसको, कन्वर्टेबल डेट, तो वो भी डेट ही है ना, तो वो सीनियर है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन हाउ यू मैनेज योर इक्विटी, बिकॉज जो आप बड़े खुशी खुशी से बैठे हो कि जी मेरे पास तो जी 80% कंपनी है, वो कल को कन्वर्ट होता है तो आपके बैठे बैठे कंपनी अगर आपके पास हो जी मेरे पास तो 20% रहेगी कंपनी। तो यू हैव टू बी केयर। और आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि यार हमारी भी इक्विटी वाइप आउट हो गई है, या तो हो कि हमारी वैल्यूएशन ऊपर जा रही है तो कोई मसला नहीं है, इतनी ऊपर जाए कि वो डिल्यूशन को ओवरकम कर जाए। तो इसीलिए you have to be very careful who you give preferred, who you give common. कुछ इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हम आएंगे, हम इतना पैसा लेकर आएंगे, हमें कुछ प्रेफर्ड चाहिए, कुछ कॉमन चाहिए। अब उधर वो फाउंडर्स हो जाते हैं, अच्छा यार किसको कितना देना है, मैं खुद भी फिर प्रेफर्ड लूं या क्या किया जाए, वो फिर एक लंबी बहस है, वो फिर इट्स अ होल डिफरेंट नेगोशिएशन। कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं कहते हैं जी हम सिर्फ इक्विटी लेंगे, और फिर लेकिन फिर कुछ कहते हैं हाँ इक्विटी लेंगे लेकिन पहले राउंड में नॉन डिल्यूटिव होगी या एंटी डिल्यूटिव होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुझे एक राउंड तो कोई नहीं छेड़ सकता। अगर मैंने स्टार्ट किया 10% आपकी कंपनी से, तो मैं अगले राउंड के बाद भी कंपनी का 10% ओन करूंगा, ठीक है ना? तो वो ये इस तरह की नेगोशिएशंस भी कर सकते हैं आपके साथ, और उसके बाद जो होता है देखा जाए, उसके बाद मैं डिल्यूट हो सकता हूँ। So you know it's a very I mean it's a very interesting but it's a very in-depth analysis that we can do on various capitalization tables. इन्हें capitalization table कहते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर कौन क्या ओन करता है और वो कितना भारी है दूसरों पे। डेट होल्डर्स हैं, प्रेफर्ड होल्डर्स हैं, शेयर कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, फाउंडर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जिस तरह पिछले साहब बात कर रहे थे, एम्प्लॉइज को क्या देना है, एडवाइजर्स को क्या देना है। तो वो सारा एक टेबल बनता है जिसके अंदर वो आप बताते हो कि भाई कौन क्या ओन करता है। ठीक है जी, होपफुली दैट हेल्प्ड। ये मसूद साहब, ये जो प्रेफर्ड शेयर वाले हैं, ये मैंने किस जगह पर डिफाइन करनी होती है? क्या मैंने एससीपी में बताना होता है कि मैं नया बंदे को हायर कर रहा हूँ तो ये मेरा प्रेफर्ड का बंदा है और ये मैंने से इतने शेयर दे दिए? नहीं तो नॉर्मली जैसे अभी हम अपनी फैमिली के बिजनेस इस्टेब्लिश किया या एक नई कंपनी में उनसे कह रहा हूँ कि जी कर रहे हैं, तो मैं तो नॉर्मली पैसों के ऊपर करता हूँ और हम वैसे हायरार्की के अंदर दे देते हैं कि मेरे फादर जो है ना उन्होंने काफ़ी देर से बिजनेस चलाया, तो ये हम कहते हैं नहीं इन्हें चेयरमैन बना दो। लेकिन ये जो प्रेफर्ड वाली टर्म है, ये मैंने किस जगह पे डिफाइन करानी है, ये काइंडली डॉक्यूमेंट में मुझे बताएं कि किस जगह पे बिल्कुल आनी चाहिए। ये आपका वो मुझे फॉर्म एग्जाम से मेरे निकल गया है, ये कौन सा फॉर्म है, 29 है क्या है, एससीसीपी का, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ,
वो मैं अपने असिस्टेंट से पूछ सकता हूँ, लेकिन वो आपको एब्सोल्युटली क्लियर करना पड़ता है कि आप क्या दे के रहे हो इक्विटी में। जो ज्यादातर डिस्कशन है वो कॉमन पे ही होती है कि जी फैमिली बिजनेस है, ये शेयर्स है, वाले साहब इतने रखते हैं, वालदा इतनी है, बहन भाई इतने इतने, इस तरह करके वो, लेकिन वो टिपिकली सारे कॉमन पे चल रहा होता है। कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब आप कहते हो कि नहीं जी ये ओन तो 5% करते हैं लेकिन वोटिंग राइट इनके 50% है, ओन तो 5% करते हैं लेकिन डिविडेंड इनको 80% मिल रहे हैं। You see what I'm saying? फिर वो आपको SEC में रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि इट्स कॉल्ड, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपने देना होता है, लेजिटिमाइज करने के लिए देना होता है, बाकी तो उस पर कोई ऐसा रूल नहीं है। यू कैन डिसाइड द बोर्ड कैन डिसाइड व्हाटएवर दे वांट कि किसको कितना देना है, उसको आप जो मर्जी कह लो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि जब आपकी कंपनी के अंदर कोई थर्ड पार्टी आएगी ना, तो उसको टेंशन होती है देख के कि यार ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कहानी है, कोई इसमें कोई 50 बंदा बैठा हुआ है कैप टेबल के अंदर, कोई 0.01% लेके बैठा हुआ है, तो कोई 70% लेके बैठा हुआ है, तो किसी का कन्वर्ट है, तो किसी का प्रेफर्ड है, तो किसी का फलाना है, किसी का कॉमन है। वो फिर उनको टेंशन इस चीज की होती है कि भाई इसको साफ करो। फिर ये होता है कि यार एक टेंडर डालो ताकि इन सबको फारग कर दो, यानी कि आप सब के सब जो है ना हमें अपने शेयर इस प्राइस पे हमें दे दें, प्रेफर्ड हो कॉमन हो जो भी हो, हमें आप इस पे दे दें। वो फिर एक पूरा प्रोसीजर होता है SEC का, इट्स मतलब उसमें आप नोटिफिकेशन द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन करनी होती है। खैर वो एक सेपरेट कहानी है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज के इन्वेस्टर्स प्रेफर क्लीन कैप टेबल्स। गिचड़ मिचड़ और बहुत सारी चीजें जो है ना वो इरिटेट करती हैं लोगों को। इवन देयर इज अ, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन खैर ये कंपनी के साथ मैंने काम किया था जिनको एक वर्बल ऑफर भी मिल गई थी, लेकिन जब उन्होंने आके कैप टेबल खोला, और वो माशाल्लाह कोई वो 10 साल पुराना कैप टेबल था, मैं 10 साल से वो कैप टेबल इवॉल्व हो रहा था, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इतने लोग हैं, इतने फ्रैगमेंटेड है कि वो चूचों का मुरब्बा बना हुआ है, मतलब कि उसमें कोई 50 बंदा है जिसकी किसी के वोटिंग ज्यादा है, किसी की कम है। फिर कहो जी कि फिर उन्होंने बोला कि जी इनको ग्रुप्स में डालो, ये मैं 50 लोगों से निगोशिएट हमने नहीं करना, इनको ग्रुप में डालो, किसी तरीके से इनको 3 ग्रुप्स में ले आओ, 2 ग्रुप्स में ले आओ, ताकि हम उन ग्रुप के साथ डील करें, वरना बारी बारी तो आप डील नहीं कर सकते। तो बी वेरी केयरफुल एज फाउंडर्स कि आपने अपना कैप टेबल किस तरह डेवलप करना है। अब कुछ लोग हैं वो थोड़ी सी मैं खुल के बात कर रहा हूं, क्योंकि फैमिली बिजनेस होता है तो होता है कि जी बस आंखें बंद करके ट्रस्ट करो, लेकिन थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ कि जो बंदा फैमिली में ज्यादा काम कर रहा है ही और शी डिजर्व्स मोर इक्विटी। भाई भाई जो है वो 50-50 करके कल को यही भाई भाई दूसरे गले पे पड़े होंगे, मैं आपको खुल के बात बता रहा हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इफ यू आर डिवाइडिंग योर कैप टेबल, तो एक आपका ऑपरेशनल पार्टनर है, दूसरा आपका साइलेंट पार्टनर भी हो सकता है, और उसको आप कह सकते हो कि भाई काम मैं कर रहा हूं तो आई लोन 70% of the company, you loan 30% of the company, या 60-40 या whatever the number is, but it has to be very clear upfront। क्योंकि होता ये है कि जब 50-50 होता है और एक काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, तो फिर मेरे हिसाब से ज्यादातर कंपनीज का जो डाउनफॉल होता है वो इन्हीं रिलेशनशिप्स के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। somebody is getting a free ride, somebody is underappreciated, right? So just again मैं वो बात इस वजह से जोड़ रहा हूँ काफी चीजों में, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में हो रही होती हैं। तो I want us to have both the view of the forest and the trees as well। ठीक है जी। तो सॉरी इस केस में अगर एक को वो पे के साथ कॉम्पनसेट कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो वो कैन दैट वर्क आउट? किसके साथ कर रहे हो सॉरी? कि जो भाई ज्यादा काम कर रहा है उसको आपने ज्यादा बेहतर सैलरी दे रहे हैं, दूसरे वाले को आप सैलरी नहीं दे रहे, खाली आप प्रॉफिट्स दे रहे हैं क्वार्टरली। एब्सोल्युटली, व्हाटएवर इज फेयर। अभी जिस तरह एक अभी मैं जानता हूँ मेरे फ्रेंड है, उसको मिल रही है कोई मेरे ख्याल से 1.5 लाख सैलरी ड्रॉ करता है वो महीने की। व्हाई? बिकॉज ही इज द ऑपरेशनल पार्टनर। उसका भाई जो है ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द कंपनी, उसके सिर्फ शेयर्स हैं कंपनी के अंदर, तो वो एंड इट इज परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है उनकी। उसके अंदर उसको मेरे ख्याल से द वे दे हैव डन इट इज लाइक 51-49, एक वो भी किया हुआ है प्लस सैलरी लेते हैं, ताकि उसके पास एक डिसीजन में देखे ना,
the worst thing you can do is to sit at 50-50 with a conflict. तो आपने थोड़ा सा आपको लेवरेज देनी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, वरना फिर ये हो जाता है कि जी इन्वेस्टर्स आते हैं, वो तोड़ते हैं कैप टेबल को, फिर वो आपस में तो जो जोड़ तोड़ जाए आपको, जो हमारी पार्लियामेंट में हो रहा होता है, ये हमारी कैप टेबल में भी ये चीजें चल रही होती हैं। तो कई जगह नूरा कुश्ती हो रही है, कई जगह एक्चुअली हो रहा है, सो देयर इज, you have to be very, you have to protect your cap table. Let me put it that simply. You have to be fair, you have to be transparent, you have to be upfront कि मैं आपको ये इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि आप ये वैल्यू ला रहे हो, और मैं अपने आप को ज्यादा या कम इस वजह से दे रहा हूं बिकॉज मैं इतनी वैल्यू ला रहा हूं। और इस वैल्यू को कैप्चर करने के दो तरीके हैं, या मुझे आप ऑल कैश दे दो, सॉरी ऑल इक्विटी दे दो विद प्रेफर्ड, या मुझे इक्विटी विद कैश दे दो, सब कॉम्बिनेशन दे दो, ताकि उसकी फेयरनेस को रिकग्नाइज किया जाए। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, हमारे ईगोस थोड़े फ्रेजाइल होते हैं कि हम समझते हैं कि यार 50 से कम का मतलब है कि मैं उसकी पुत्र गुलामी कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं होती। वी हैव टू हैव अ सेंस ऑफ कि देयर हैज टू बी अ डिसीजन मेकर, एंड बिजनेसेस दैट कैन स्टार्ट वेरी वेल बट मोस्ट बिजनेसेस डोंट एंड वेल। व्हाई? बिकॉज पर्सनैलिटीज और कॉन्फ्लिक्ट और ये चीजें आ जाती हैं। इस वजह से कैप टेबल का ख्याल रखें। ये सारी बातें अपनी जगह, एमवीपी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, फलाना ढुमकाना, ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी कंपनी का कितना हिस्सा किसको दे रहे हैं, किस टर्म्स पे दे रहे हैं। क्योंकि अगर कोई अच्छा आपको तगड़ा इन्वेस्टर मिलता है और वो आता है कहता है यार ये मुझे तुमने किस मुसीबत में डाल दिया, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड एन इम्बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कैप टेबल। मैं एज अ कॉमन इक्विटी आ रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास कोई 4 प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स बैठे हुए जो मुझे खप डाल सकते हैं। अब उनके साथ भी मैं नेगोशिएट करूं। अभी एक साहब थे जिन्होंने लोन लिया हुआ था, उन्होंने कहा जी भाईजान मुझे या तो आप पैसे दें या मैं आपको कोर्ट लेके जा रहा हूं। तो उनसे नेगोशिएट नया इन्वेस्टर कर रहा है आके कि देखें जी मैं आपको आधे पैसे भी दे देता हूं, या आप फिर वो या शेयर्स ले लें कंपनी में। अब और उसकी सरदर्दी है कि यार ये मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है कि मैं एक, क्योंकि वो गलती फाउंडर्स ने गलती की हुई थी, वो 3-4 साल से गलतियां पे गलतियां करते जा रहे थे, क्योंकि उनको था कि जी किसी तरीके से पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। अब पैसा इज नॉट द सेम फ्रॉम एवरीबडी, हर किसी का पैसा सेम नहीं है। करोड़ रुपया फ्रॉम ए इज नॉट द सेम एज करोड़ रुपया फ्रॉम बी। तो पैसे के साथ ख्वारी भी है, पैसे के साथ गाइडेंस और लैक ऑफ गाइडेंस भी है। आई वुड रादर टेक 50 लाख फ्रॉम अ टॉप नॉच वीसी जो कि मेरे लिए 50 अरब के जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी खोल सकता है। आई वुड रादर डू दैट डील। तो ये थोड़ी सी आई वुड से एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती हैं, थोड़ी सी कुछ लोग इमेच्योरिटी से मार खाते हैं और गलतियां करने के बाद रियलाइज करते हैं कि यार ये कैप टेबल को साफ रखना चाहिए था। सो आई थिंक आई एम ग्लैड कि दिस डिस्कशन काइंड ऑफ हैपेंड बिकॉज हम वैल्यूएशन और फोरकास्टिंग और यूनिट्स और इन पे बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं विच इज कैप टेबल एंड योर एचआर। ये दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं जिसपे हम फोकस कम करते हैं। Yeah, don't fall for vulture capital. Yes, I agree. There's plenty out there. I don't know if you guys are facing it or not. लेकिन मैं अभी भी सरप्राइज हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा था, आजकल तो मैं नहीं पढ़ा रहा for the last year and a half or so, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आए, कुछ MBA के भी थे, कुछ अंडरग्रेड के भी थे, कि जी कोई सेठ साहब है, उन्होंने ऑफर किया जी 80% कि 80% मैं कंपनी ले लेता हूँ। That's vulture capital. Never agree to something like that. That's ridiculous. वो बेसिकली आपको फिर एम्प्लॉय बना रहा है। तो ये तो बेवकूफी है। या तो आप बोलो ना कि मैं एप्पल के साइज का हूँ या गूगल के साइज का हूँ और वो मैं 80% ले रहा है और 20% मेरा, वो तो समझ आती है। आपने स्टार्ट नहीं किया तो आपको सेठ साहब ने वैसे ही 80% डिल्यूट कर दिया है। सो ऑफ द बैट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, से नो टू दैट काइंड ऑफ वल्चर कैपिटल। Okay. Any other questions? I don't know if I missed any questions. अच्छा, ये मसूद सर एक आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल है, पता नहीं मेरी आपसे मुलाकात हो है ना। अच्छा, हमने ये किया हुआ है कि अब्बू जैसे अभी कंपनी के डायरेक्टर हैं और हमने ना स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, एक भाई का शेयर है, एक मेरा शेयर है और अम्मी का एक शेयर लिखा हुआ है। इज इट फाइन इनफ कि वो वाला डॉक्यूमेंट काफ़ी है, या फिर जो हमने SCCP के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहाँ पे भी हम जाके पावर डिफाइन कराएं कि इस बंदे की इतनी पावर है, इस बंदे की इतनी पावर है, इसकी इतनी स्टाम्प power है? पेपर की वैल्यू कोई नहीं है जी। स्टाम्प पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपका रजिस्टर्ड नहीं है SCCP के साथ, क्योंकि इफ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड, यू आर अ कंपनी ऑब्वियसली,
आप यू नॉट एन AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं हो, आप एक रेगुलर पार्टनरशिप नहीं हो, यू आर अ कंपनी। तो कंपनी की वही होगा जो आपकी SECP के साथ रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड है, एंड इट हैज टू बी करंट, लाइक इट कैन नॉट बी कि हमने वो 6 साल पहले किया था, समथिंग लाइक दैट। तो आपको अपनी जो मैनेजमेंट के, जो मेरे पास इधर पड़ा होगा शायद उठ के जाना पड़ेगा, लेकिन वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं। वो स्टाम्प पेपर इज बिटवीन, जिस तरह होता है ना, ये गाड़ियों को ओनरशिप पे बेचते हैं कि जी यार वो मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर लिख के देता हूँ, ये गाड़ी तुम्हारी है। भाई नोबडी केयर्स अबाउट दैट, द रियलिटी इज कि व्हाट्स इन द सिस्टम। पंजाब में गाड़ी बेच रहे हो तब क्या, इस्लामाबाद में गाड़ी बेच रहे हो तब क्या, सिस्टम में आपका नाम है कि नहीं है, क्योंकि मुझे बायोमेट्रिक्स चाहिए टू ट्रांसफर द कार। सो SECP आपको रिक्वायर्ड, SECP की रिक्वायरमेंट हैज टू बी मैंडेटरी। तो वही बात है, और लोग कुछ ढीले पड़ जाते हैं कि यार कोई लिखत पढ़त बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्रैंकली कोर्ट ऑफ लॉ में एंड में यही पूछा जाएगा, क्योंकि स्टाम्प पेपर तो मैं कहीं से भी जाके जमा करके कहूँ जी मैंने किया है, जी किसको, मतलब यू नो देयर इज, if you are registering with the SECP, then you have to update SECP. You cannot register with SECP and then do deals outside of SECP. Hopefully that helps. जी सर, it answered. और कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, it's not that difficult. ये तो आप खुद भी कर सकते हो, there's plenty of, हम भी बहुत सारों को जानते हैं कंसल्टेंट्स को जो कि ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो very reasonable rates. So if anybody needs assistance with documentation वगैरह, मेरा एसोसिएट है, he runs his own firm. By the way, we were talking about partnerships. This is one of the things I've done is कि I team up with other firms and I tell people to go establish their own firm. बजाय कि मेरे साथ नौकरी करो, खुद एंटरप्रेन्योर बनो, और फिर मैं इनके साथ पार्टनरशिप्स करता हूँ, फिर इनको प्रोजेक्ट्स में मैं ले आता हूँ, फिर इनको रिफरल करता हूँ या वो मुझे रेफर करते हैं कई दफा। सो आई लाइक टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जिस तरह हमारे जो इकोसिस्टम में है काफी सारे लोग हैं जो आपकी बेसिक टैक्सेशन वगैरह, SECP की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, AOP बनाना हो, पार्टनरशिप बनानी हो, कुछ भी हो, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। मैंने खुद किया अपनी कंपनी के लिए, आप खुद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बैंक खोलना हो, अकाउंट खोलना हो, एनुअल रिपोर्टिंग हो, quarterly reporting, वो सारी चीजें करके देते हैं। So if any of you guys need that assistance, please do reach out to me. Okay, sorry, I have a quick follow-up question. Again, regarding employees share pool. कि फर्ज कीजिए शुरू में हम लोग का एक कोर टीम मेंबर है, उसको हमने and we had this thing in mind कि okay 10% हम employee pool बनाएंगे। तो अब जब उसको हम एनरोल करते हैं तो 10% उसको मिल जाता है, लेकिन शेयर्स की बाद में, ठीक है। तो फर्ज कीजिए साल बाद कंपनी की वैल्यूएशन अप होती है और कोर टीम मेंबर्स आते हैं, तो हम उनको भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ऑफर करते हैं। तो बेसिकली उसी पूल के अंदर से ज्यादा शेयर्स क्रिएट होंगे और वही उनको मिलेंगे ना, ऐसा ही है? अच्छा, कि हमारा जो 10% पूल रीच शेयर, सॉरी आपकी आवाज कट के आ रही थी मुझे, मैं लेट मी जस्ट, जो मुझे समझ आई आप ये कह रहे हो, स्टार्टिंग में आपने 10% एलोकेट किया एम्प्लॉइज के लिए, एंड यू सेड कि यू हैव गिवन दैट 10% टू दिस एम्प्लॉय। सारे का सारे 10% आप नहीं देना इसको। वो जो पूल है उसके अंदर दो किस्म की चीजें होती हैं। एक होता है कि आपने एक फिक्स पूल रखा हुआ है। फिक्स पूल का मतलब है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस एवरी फंडिंग राउंड आपने 10% देना ही देना है एम्प्लॉइज को, तो वो बढ़ता रहेगा, राइट? मोर शेयर्स आर इशूड, सो द पूल विल, the number of shares per pool will go up to maintain that 10% level. दूसरी बात यह है कि आपने जब देना है तो आपने इस तरह करना है, मैं आपको give me specific examples. If you're the founders वाला आपके अपने shares हैं, लेकिन if let's say you want to bring in you know, I don't know, head of operations या something like that, आपको यार भाई आपको हम देंगे 2.5% कंपनी का शेयर्स देंगे। किस तरह देंगे? वो वेस्ट होंगे और उसका एक क्लिफ होगा। वेस्ट का मतलब क्या होता है कि इस तरह नहीं कि आपने आज में आपके साथ हैंडशेक किया, आपको 2.5 पकड़ा दिए, आपको ओवर 6 months 9 months, जैसे एक प्रोबेशनरी पीरियड होता है, 12 months आपकी हम परफॉर्मेंस देखेंगे और आपको हर महीने वो शेयर्स वेस्ट होते जाएंगे। और लेट्स से
साल के अंदर तक आपको 1% मिल जाता है, और फिर एक क्लिफ आएगा। क्लिफ से इसका मतलब है कि एकदम झटका। तो क्लिफ से आपको, अगर हम चाहते हैं कि आपके साथ कंटिन्यू करें, हम आपको 1.5% और दे देंगे, तो 2.5% हो जाएगा। यानी कि आप, हम भी खुश हों, आप भी इन्वेस्टेड हों, हमें ही पता हो कि हमने सही बंदे को शेयर्स दिए हैं। और उसमें जो एक और चीज होती है, उसमें क्लॉबैक्स होते हैं। क्लॉबैक का मतलब है कि यार ये गलती कर दी, इसको देके ये हमें नहीं देना चाहिए था, अब इससे क्लॉबैक करो शेयर्स। वो भी आप परफॉर्मेंस बेस कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जो एम्प्लॉय ऑप्शन पूल आपका जो है, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल टू ड्राइव परफॉर्मेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। छोटी बड़ी से फर्क नहीं पड़ता, इंसेंटिव होने चाहिए। लोगों को तकलीफ होती है, यार मैंने अपनी कंपनी बनानी है, मैंने शेयर होल्डर बनना है, शेयर, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकली होता है ना कि यार वी ओन समथिंग, वो बड़ी अच्छी बात है। बट किसी को आपने 2.5% या 10% तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है आउटसाइड ऑफ, मैं कह रहा हूँ, फाउंडर्स द्वारा। आपने उठा के पकड़ा दी उसको, उसकी कदर नहीं आएगी। वो कहेगा जी मैं तो 2.5% बैठा हुआ हूँ, अब मुझे निकाल दें, जो मर्जी कर दें, आई विल ओन 2.5% ऑफ दिस कंपनी। इस तरह मैं 4 कंपनीज में जाऊंगा तो मेरे पास 10% टोटल शेयर्स होंगे, 4 डिफरेंट कंपनीज में स्प्रेड हुए। दिस इज नॉट द वे टू डू इट, राइट? सो द वे टू डू इट इज मेक इट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। उसकी स्पिरिट क्या है इस चीज की, ऑप्शंस की क्या स्पिरिट है, कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं उसकी वैल्यू जो है उससे 100 गुना ज्यादा होगी, लेकिन आपको वो चीज हम जो है ना, जो चीज 100 रुपए की चीज हम आपको 1 रुपए में देंगे, लेकिन पहले 100 तक लेके जाओ उसको। यही है ना ऑप्शंस। ऑप्शंस का ये मतलब है कि यू हैव द ऑप्शन टू बाय इट एट चीपर रेट देन व्हाट द मार्केट इज सेइंग। उसमें फेथ होना चाहिए एक दूसरे में, उसमें आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन तगड़ी होनी चाहिए, फलाना फलाना फलाना, लेकिन एट नो पॉइंट इट शुड बी आंखें बंद करके ठग करके सारा पकड़ा दिया। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी ग्रेजुअल, वेस्टेड, क्लिफ्ट, विद क्लॉबैक्स, ताकि दूसरे बंदे को पता हो कि भाई साहब इतना आसान नहीं है कि आपने वो खून पसीना को फाउंडर एक कर रहा है, आप आके अपने आपने 2 लिंक्डइन पे टाइटल डाल दिए हैं, 3 फेसबुक पे तस्वीरें डाल दी कि जी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढुकाना हूँ, और मैं आई ओन दिस कंपनी। ये हमारे अभी वी आर स्टिल गोइंग थ्रू सम ऑफ दैट, क्योंकि अभी इमेच्योर थोड़ी सी हमारी मार्केट है। द गेम इज यू हैव टू अर्न एवरी पेनी ऑफ इट। मैं एज एन एडवाइजर, आई हैव टू अर्न एवरी पेनी ऑफ इट, एवरी शेयर आई हैव टू अर्न। अगर मैं एडवाइस सही नहीं देता, वो खत्म कर सकते हैं। मैं 2 हफ्ते का वो जो नोटिस पीरियड है, उसके बाद जी साहब फर्क, कोई मसला नहीं। सो आपने अगर इस तरह देना, कुछ लगाएंगे जी जब तक मुझे नहीं दोगे तो मैं आऊंगा नहीं, इसका फ्रैंकली मेरे लिए वो एक रेड फ्लैग है। मुझे जब तक सारे के सारे अपफ्रंट नहीं पकड़ा दोगे तो मैं शेयर नहीं दोगे मुझे, तो मैं नहीं आने वाला। तो यार आप इंसेंटिव देखो, आप एज अ फाउंडर सोचो, एज एन इन्वेस्टर सोचो। अगर आपने इस तरह के 4 लोग जमा कर लिए जिन्होंने आके बैठ के कैप टेबल पे बैठना है और काम नहीं करना, तो आपकी तो कंपनी गई। Be very careful in how you manage your cap table, especially with your employees. Hopefully that answers that. Okay. Any other questions you may have? Let's see. How to forecast valuation of customized service-based company? Customized. Why does it matter if it's customized or not? So let me just answer. Any service-based company, I mean, software is a service, right? SaaS companies. Typically valuation क्या है? चले मैं इसी क्वेश्चन को मैं लेके थोड़ा सा खींच के थोड़े सा मैं शेयर करता हूँ my 2 cents. आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस, whether it's a product or it's a service, वो किन मेट्रिक्स पे चलेगा। अगर मैं पेन बनाने के बिजनेस में हूं, वो मेट्रिक्स फर्क है। अगर मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं, वो मेट्रिक्स फर्क है। अगर मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं या सर्विस बेच रहा हूं, which is a service, तो I have to look at CAC, I have to look at churn, I have to look at LTV, right? What is CAC? Customer acquisition cost. LTV, lifetime value. Churn, 1 minus retention percentage, right? या कितने लोग मूव आउट कर रहे हैं आपके बिजनेस में से।
MRR, monthly recurring revenues, ARR, average annual revenues, and annual recurring revenues. I have to know कि मेरी वैल्यूएशन अगर मैं सर्विस कंपनी में हूंगा तो वो इन मैट्रिक से चलेगी, वो इससे नहीं चलेगी कि मेरा ग्रोस मार्जिन क्या है, जो कि हो सकता है पेन के बिजनेस में मेरी ग्रोस मार्जिन से चले। तो भाई साहब आपका ग्रोस इंडस्ट्री का ग्रोस मार्जिन जी पेन बनाने की इंडस्ट्री में जी 30% है, आपका कितना है जी? मेरा 10% है। लेकिन जी फिर आपको तो वैल्यू नहीं कर सकते। नहीं जी मैं बड़ा ग्रो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नहीं, वैल्यूएशन देखें, आपके बिजनेस में इस तरह वैल्यू होती है। कंपनी गाड़ी एक डिफरेंट तरीके से वैल्यू होती है, प्लॉट जमीन डिफरेंट तरीके से वैल्यू होती है, बैंक डिफरेंट तरीके से वैल्यू होता है, एयरटेल या टेलेनॉर डिफरेंट तरीके से वैल्यू होता है। ठीक है, आपने हेयर ड्रेसर की दुकान खरीदनी है, डिफरेंट तरीके से वैल्यू होती है, आपने केक बना के बेचने, डिफरेंट तरीके से वैल्यू होती है। So depending on what you are offering in a product or a service, please know your relevant metrics, क्योंकि उनके बगैर ये कॉन्वर्सेशन जो होती है ना वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है। इन्वेस्टर्स वांट टू नो कि डू यू अंडरस्टैंड कि आप मुझे क्या पिच कर रहे हो। मेरे पास एक आया था, स्टार्टअप आया था, उन्होंने कहा था कि सर यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि वी आर वेरी प्रॉफिटेबल ईयर 2 एंड ऑनवर्ड्स। तो मैंने कहा यार I mean, I don't know how you get there and why you get there. मैं तो I want to understand. तो जब वो देखा तो था कि जी इतने लोग आ जाएंगे, इतने ये हो जाएगा, उतने। लेकिन जब उनके मैट्रिक्स को हमने देखा, मैंने कहा आप इतने ज्यादा लोग ला रहे हो इतनी कम मार्केटिंग से। एंड मैंने सेट किया आपकी फॉर इंस्टेंस आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो कैक है, एवरेज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज अराउंड $12। जब मैंने उनका कैक कैलकुलेट किया, that was $0.50। मैंने कहा मैंने आपको टेम्पलेट दी थी, आपने इनकम स्टेटमेंट भी बना ली, आपने कैश बर्न भी कैलकुलेट कर लिया, आपने सारी कहानी बना ली, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप 1/24 यानी कि लाइक 95% लेस स्पेंड ऑन मार्केटिंग से कैसे निकाल रहे हो इतने बंदे। उसका जवाब नहीं था उनके पास, क्योंकि मेरा तो ये था कि रिटर्न ऑन कैक मैंने देखना था उनकी जो बिजनेस में। आई नीडेड टू अंडरस्टैंड देयर कैक एंड देन से कि यार इस कैक पे इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, एंड देयर नंबर्स वर कंप्लीटली ऑफ। फिर मैंने चर्न की बात की, मैं कहा कितना चर्न डाला है, उनको पता नहीं था कि चर्न का मतलब क्या होता है। एंड इट्स ओके इफ यू डोंट नो इट, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज as you evolve through these trainings you have to know these metrics. It's the opposite of retention. Churn is the opposite of retention. What you retain stays with you, what churns out, leaves you, right? So मैंने कहा churn क्या लगाया है, पता चला जी 0% churn है। आप सिर्फ 10% churn कर देना अपने बिजनेस में तो आपका बिजनेस हिल जाता है, वो 0% churn पे बैठे हैं। Some of the best businesses have about, I would say, 1 to 1.5% churn a month, which is about 15 to 17% a year. ये one of the best businesses है, और इन्होंने 0% पर रखा। तो obviously the numbers are going to be like there is no valuation। क्या यार मैंने क्या वैल्यू करना है आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी को, आपको तो पता ही नहीं है कि ये ना कैक का पता है, ना चर्न का पता है, ना फलाने का पता है, ना एलटीवी निकल रही है सही, ना कुछ ना का। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आपके बिजनेस में, आपके सेक्टर में किस तरह वैल्यूएशन लगती है। जब आपने घर जमीन लेनी होती है, लोग कहते हैं जी ये जो है ना, ये अपना ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है इसकी कोई वैल्यू नहीं, कीमत तो जमीन की होती है। और जिसकी जमीन हो गया यार ये क्या बात कर रहे, मैंने 2 करोड़ लगाए घर को बनाने में, तुम कह रहे हो जी कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं। तो दैट्स व्हाट इट इज। अगर आप बैंक के पास जाओगे, बैंक के पास nobody frankly cares about the gross margin, they care about the deposits, क्योंकि बैंक का जो धंधा है उसके अंदर वो डिपॉजिट्स के ऊपर ही लैंडिंग करके पैसे बनाते हैं। तो असल वैल्यूएशन मैट्रिक क्या हो गया बैंक की, डिपॉजिट्स। अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये अपने ये टेलेनॉर वगैरह, इनका बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट यूज होता है, ये टावर शार्स लगे होते हैं, आपकी जो अंडर सी केबल्स वगैरह इधर उधर जो भी। तो जब ये इतना ज्यादा यूज है तो इनके लिए मैट्रिक होता है ईबिटा का, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इट्स अ माउथफुल, लेकिन कहने की बात है वो इट्स अ मेजर, क्योंकि डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होती है।
इतना इक्विपमेंट होगा तो डिप्रिशिएट करेगा तो वो तो आपकी पीएनएल को उड़ा देगा। तो कहते हैं यार नहीं नहीं नहीं, इसको निकाल के बात करो, डिप्रिसिएशन को निकाल के बात करो ताकि हमें ज्यादा क्लैरिटी मिले। अब आप ईबिटा लगाने चले जाओ बैंक के ऊपर तो कहेंगे जी आप मजाक कर रहे हैं, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर देन सम कंपनीज जिनकी डेट ज्यादा होती है उनको एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स लगाया जाता है, ईवी टू सेल्स लगाया जाता है। जो स्टार्टअप्स होती हैं ज्यादातर उनको प्राइस टू सेल्स पे किया जाता है। जो एस्टैब्लिश कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं उनको प्राइस टू अर्निंग्स पे किया जाता है, पीई रेशियोज पे किया जाता है। So depending on who you are, you have to come up with the metrics, so then you can sell your company to the right investor. और वो आपके फाइनेंशियल मॉडल में, आपकी पिच में, आपकी जुबान पे, उर्दू अंग्रेजी डजंट मैटर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो जो जिसको आप बेच रहे हो ये आइडिया, he or she is looking for those metrics in the conversation, and if you don't bring that in the conversation, that tells them कि इसको पता नहीं है कि ये वैल्यूएशन जो हम करने जा रहे हैं वो किस तरीके से होगी, and there will be a disconnect. So hopefully that answers that. Okay, great. I'm glad I've answered some of your questions. How much time we have? We have less than 15 minutes left. Any other questions? Be happy to answer. आप लोग थक गए थोड़े। I think this has been fantastic. So मुझे लग रहा है कोई सारे आपने questions के answers कर दिए अब तक तो। मैं उनके भी जवाब देता हूँ जो आपने नहीं पूछने या शायद पूछने वाले हो, क्योंकि आई फील लाइक कि मेरा ये जो होते हैं ना इस वक्त फाउंडर्स एंड स्टार्टअप्स में इस वक्त लोग होते हैं, इन पे इतना बर्डन होता है इतनी सारी चीजों का कि वो उनको कनेक्टिंग द डॉट्स में टाइम लग जाता है। So that's why I try to cover as much base ताकि मैं वो डॉट्स थोड़ी सी प्री कनेक्ट कर दूं आप लोगों के लिए। Definitely. Do we have any other questions for Saud? We have Saud here with us. Okay. Saud आप अपना एक दफा और email address link कर दें. So for those of the participants who would want to get in touch later. Yes. During because I believe सबने अपना proposal complete नहीं किया. They probably most of them are halfway through, some are 30% through, so that's also a problem. ठीक है, okay. मैंने आपको Danny, thank you everybody. मैंने आप लोगों को अपनी email भी डाल दी है group chat में. Feel free to reach out. And I think आपको जो first थे जो जिन्होंने question पूछा था, please don't take the stress के if things are not clear, if things are too fluid, आप इस पे महीना भी लगा लोगे ना तो उसके अंदर भी आपको 50 मूविंग पार्ट्स मिलेंगे। हमने परफेक्शन नहीं लेनी, हमने कॉन्सेप्ट लेना है। Why are we doing all of this? We're not trying to impress anybody. We're trying to make sure our narrative is financially clear. जब क्लैरिटी नहीं होती ना उधर मार पड़ती है आपको। और मेरे पास कितने इन्वेस्टर्स कहते हैं यार देखो गुड गाय हॉरिबल मैनेजर। मैंने कहा क्यों? उसको पता ही नहीं था कि किस तरह कैप टेबल को हैंडल करना है। ये तो इस पे इतना बर्डन हो जाएगा कि हम उसको सिखाते ही रह जाएंगे अगले 2 साल। If somebody else were to come up with this, तो मैं कहता हूँ इतना कोई एफर्ट है नहीं, to be honest. If you आप जिस तरह आप लोग you're very blessed कि आप लोगों के पास ये प्लेटफॉर्म है, you're learning on the fly. आप इसमें थोड़ा उतरो, roll up your sleeves literally and get into it. Ask questions, make mistakes, ask questions with the view कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी जुबान क्लियर होगी, आपकी पिच क्लियर होगी, आपके दिमाग क्लियर होगा, आपकी नेगोशिएशंस विद योर एम्प्लॉइज क्लियर होगी, विद इन्वेस्टर्स क्लियर होगी। क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस इन माय ओपिनियन। Okay. Just Mirai, one last thing. Ji, please go ahead, Heather. So you mentioned that many of the startups are they are looked at from the price to sales ratio, which I'm reading right now is market cap divided by annual revenue. But maybe if you could just comment on that a little bit more. Sure. मैंने आपको परसों शायद बोला था कि I look forward, I don't look backwards in valuation, right? अब लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं आपने लास्ट 12 months, तो अभी क्या वी आर इन मिड अप्रैल, लेट्स से
अगर मैं पिछले अप्रैल से इस अप्रैल तक लगाऊं, मैं कहा आपने 50 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट किया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कहेंगे सर अब वैल्यूएशन लगाएं। मैं कहा अच्छा, मैं उससे पहले क्या किया था, उससे पहले आपने 10 लाख रुपए जनरेट किया था एक साल में, उससे पहले क्या किया था, उससे पहले आपने 2 लाख रुपए जनरेट किया था। सो नाउ आई नो कि देयर इज अ ट्रेंड, यू बीन काइंड ऑफ गेनिंग ट्रैक्शन। मैं कहता ठीक है, अब मैं कहता हूं आपने अगले साल क्या करना है। अब आप कह सकते हो कि सर अगले साल वी एक्सपेक्ट कि हम 2 करोड़ रुपया करेंगे रेवेन्यू में, ठीक है। अब मैं आपको पिछले साल के ऊपर वैल्यू नहीं करूंगा। तो जब आप कह रहे हो ना मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स, वो एक आप समझ लो एक फैक्टर है, यू यूज दिस फैक्टर। तो सवाल ये बनता है कि अगर कोई कंपनी एक ग्रोथ शो कर रही है एंड यू बिलीव इन दैट ग्रोथ, सिर्फ ये नहीं कि शो कर रही है, अभी आई एम ऑल्सो डीलिंग विद अ कंपनी जिनकी पूरी स्ट्रेटजी बाहर फेंकी जा रही है टोटली, आफ्टर 4 years the strategy is ending, they're starting a new chapter altogether। और ये भी होता है, बहुत कॉमन है, आई हैव डन सेवरल स्पिन ऑफ्स जिसके अंदर ये करना पड़ता है, मजबूरी होती है, क्योंकि आप डिटाई तो नहीं कर सकते मार्केट से, मार्केट इज राइट, यू नो, यू कांट जस्ट कीप सेइंग आई एम स्टबनली नहीं मैं ये करूंगा। तो दे हैव रियलाइज्ड, दे आर थ्रोइंग द स्ट्रेटजी आउट। बट इन दिस केस लेट्स से आपका एक ट्रैजेक्टरी है, आप चलते जा रहे हो और आगे प्रोजेक्ट कर रहे हो आप 2 करोड़ रुपया, एंड आई बिलीव इन दैट कि ये 2 करोड़ करेंगे, एंड आई बिलीव कि ये ग्रोथ देंगे और हाइपर ग्रोथ देंगे, क्योंकि दे हैव ब्रोकन द सीलिंग, दे कैन, जो इन्वेस्टमेंट रेडीनेस की बात होती है, दे आर एट अ पॉइंट वेयर दे कैन ब्रेक आउट इनटू द मार्केट। ये अपने 4 लोगों के कुंभे में से निकल आए हैं, ये अब मार्केट में उतर गए हैं, अब ये इस्लामाबाद से लाहौर में चलेंगे, लाहौर से कराची में चलेंगे, पाकिस्तान से अब यूएई में जा रहे हैं। यू नो, वंस आई स्टार्ट सीइंग कि देयर इज जेन्युइन ability for them to grow, then I'll value you on your next 12 months, not on your last 12 months. I'll say okay, मैं कहूंगा अदर आपकी यार ये 2 करोड़ का रेवेन्यू है, आप I'm very happy with your execution, I love the market, I love the product, the service, whatever it is, I definitely see that you guys are, you know, doing extremely well. I'm willing to put up, let's say, मैं negotiate कर सकता हूँ, मैं कहूँ यार I'll pay you 7 times sales. Factor है ना, price to sales 7 times. Sir 7 times का मतलब है future sales, हाँ जी future sales, तो आप 14 करोड़ रुपए लगा रहे हैं हमारी वैल्यूएशन। कहूँगा yes, 7 multiplied by 2 करोड़। सर देखें, we think we are a 10x company, हमें 10 times sales दें, मैं 7 दे रहा हूँ, आप 10 कह रहे हो, and then we may negotiate somewhere कि चलो यार 8 सवा 8 पे फर्क करो, इस बात को खत्म करो। वो हमने किया तो पता चला कि जी यू नो $1 million कंपनी बन गई। ठीक है जी, $1 million कंपनी है, सर कितने आप लोग, हाउ मच आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट? विल इन्वेस्ट $200,000। ओके, सो पोस्ट मनी $1 million कंपनी पे 20% मैंने आपको दे दिया। दैट्स द वे टू डू इट, बट दिस इज फॉरवर्ड लुकिंग। अगर मैं कन्विंस्ड ही नहीं हूं आपकी इस ट्रेजेक्टरी पे, तो मैं कहूंगा जी ये जरा पीछे आ जाए ना, आप ये पिछला जो साल आपने किया ना 50 लाख, इस पे करते हैं, और हो सकता है मैं 7 भी ना दूं उसके ऊपर, हो सकता है मैं 4 दूं उसके ऊपर, देन यू विल से कि कहां 14 करोड़ और कहां 2 करोड़, ये इतनी वाइड रेंज होगी, राइट? क्योंकि मैंने मेरा नैरेटिव क्लियर नहीं, इसीलिए मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को कहता हूं खुदा का वास्ता अपना नैरेटिव क्लियर रखें, क्योंकि आप अच्छी भली चीज के को बिठा देते हैं बाय नॉट बीइंग एबल टू सेल योरसेल्फ प्रॉपर्ली। जैसे ही डाउट आता है इन्वेस्टर के दिमाग में कि यार इनको किस पे वैल्यू करना चाहिए, किस पे वैल्यू कर, आपको वैल्यू करना चाहिए फॉरवर्ड पे, वैल्यू करना चाहिए हाईएस्ट मल्टीपल पे, जो कि डिजर्व आप करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि एक्सॉर्बिटेंटली करो, लेकिन अगर जिधर डाउट आ जाता है ना, तो फिर लोग कहते हैं यार नहीं चलो लेट्स से दे डू अनदर 50 लाख, ये 2 करोड़ तो नहीं करने वाले, एक और 50 लाख करते हैं, और पता नहीं यार चलो 4 टाइम्स कर देते हैं, 4 टाइम्स सेल्स कर देते हैं, मैं आई एम नॉट रियली दैट कंफर्टेबल। वो कॉन्वर्सेशन कंप्लीटली डिफरेंट है भाई। 50 लाख पे 4 टाइम्स करोगे तो 2 करोड़ मिल रहा है, 2 करोड़ के ऊपर 7 टाइम्स करोगे तो 14 करोड़ मिल रहा है, तो 2 और 14 के दरमियान तो वो तो जमीन आसमान का फर्क है। सो यू हैव टू, वो जो आप कह रहे हो ना कि वो किस तरफ जाएगी वैल्यूएशन, वो आपकी पिच की वजह से जाएगी, वो आपकी जो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, ये इसको जब आप कम्युनिकेट करोगे विद कॉन्फिडेंस टू दीज इन्वेस्टर्स, तब उनको समझ आएगी कि यार उसको बात समझ आ रही है। अपनी प्लीज अपनी मार्केट साइजिंग पे जोर दें,
मार्केट साइजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी टीम पे जोर दें, अपने कैप टेबल पे जोर दें। ज्यादा जोर लगाते हैं पीएनएल पे, वो प्रोजेक्शंस पे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बाकी चीजों पे जोर नहीं लगाते। सो जब आप इन चीजों पे जोर लगाना शुरू करेंगे तब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी इन्वेस्टर के सामने। आप कॉन्फिडेंस से धड़ल्ले से कह सकते हैं कि सर अगले साल 2 नहीं, अगले साल तो हम शायद 5 करोड़ कर दें। सो इट्स अ बैक एंड फोर्थ। कोई इन्वेस्टर कहेगा जी मैं तो, हमारा तो मैंडेट है, हम तो कोई 5x ऊपर देते ही नहीं है सेल्स पे, फिर आप ना दें, फिर आप अगले अगले उसका इंतजार करें, अगली राउंड का इंतजार करें। इसी वजह से, और उसके अंदर भी हो सकता है आप उनको इनवाइट ना भी करें, आप कहें जी ये तो हमारा प्रोग्रेटिव है, हम तो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल उसी को देंगे जो हमारे साथ शुरू से खड़ा है, हम तो लॉयल इन्वेस्टर को देंगे। आपके पास आने से पहले पहले हम उनसे पूछेंगे कि जी आपने लगाना है पैसा कि नहीं लगाना, अगर वो लगाते हैं तो हमें आपकी जरूरत ही नहीं। You see what I'm saying? So ये इस तरह की सारी चीजें आपस में कनेक्ट होके ये एक स्टेज बाय स्टेज, चेक पॉइंट पर चेक पॉइंट, चेक पॉइंट पर चेक पॉइंट आपको वैल्यूएशन का समझ आनी शुरू होती है कि किस तरह लेके चलना है। एंड यू एज द फाउंडर एंड द को फाउंडर्स, आप लोगों पे ये बहुत बड़ी ड्यूटी है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से समझें इस कहानी को, वरना ज्यादातर फाउंडर्स दे आर गोइंग ब्लाइंड इनटू दीस डिस्कशंस। सो मेक वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। Real quickly, sir, can you please elaborate in which category R&D falls into? Yes, absolutely. R&D is 100% OPEX. लेकिन अगर वो प्रोडक्ट के वो कुछ जगहों पे प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर भी जा सकती है या सर्विस की कॉस्ट के अंदर भी जा सकती है। कई जगहों पे मैंने देखा है 70-30 किया हुआ है कि 70% ऑफ योर R&D इज रिकॉर्डेड इन OPEX, 30% इज रिकॉर्डेड इन COGS। ये भी हो सकता है। Vast majority of the time R&D की एक सेपरेट लाइन आइटम होता है, इस तरह होता है ना, सैलरीज, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव इन जनरल, R&D, इस तरह। तो ये ऑपेक्स के अंदर आती है। लेकिन कहीं दफा बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉस्ट एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट, वो कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट को बनाने में R&D ही लगी है, हमने एक नया फिल्टर लगाया है अपनी बॉटल के ऊपर, वो R&D जो है वो उसकी कॉस्ट लगी है, तो वो उसमें आप डालो ही डालो उसको, तो वो आप कर सकते हो, वो आपके अकाउंटिंग रूल्स वगैरह हैं। लेकिन शॉर्ट आंसर इज मोस्ट ऑफ इट इज इन OPEX. I think we've actually reached the end here. 2:27 हो गया। जी sir, Any thank other you questions? so much. Okay जी। Were you saying something before the question? आप कुछ कह रहे थे? अगर मैं कह रहा था तो मैं भूल गया हूँ। Forgotten it. Okay. I have No forgotten. problem. चलें ठीक है. Thank you so much, Saud, for your time. This has been absolutely fantastic, as always. pleasure. So looking forward. And with that, I would thank you to you. Or I will continue with the feedback forms with the participants that are left. If that's okay with you. Absolutely, would love to get your feedback. Always looking to improve. आप जो भी जिस तरह गाइड करें, and always looking to help you out. अगर if you need, आपको मैंने email दी हुई है, feel free to connect with me on LinkedIn, on email, whatever it is. Let's do that. Thank you. Thank you. Perfect. Okay जी, thank Thank you you, everybody. sir. All the very best. Allah Hafiz ji. Okay, Chala Hafiz. So, okay, so just continuing with our final closing, आपको थोड़ा सा explain करें how this process will